Saying, how are you doing today? How was your day? I am happy. You are happy. That's nice. Thank you for sharing. Hi Surya ma'am, how are you? How are you feeling? I'm feeling good, ma'am. So nice to hear that. I want to share something with everyone. Today I got my second dose of the vaccine. So I'm very happy about that. Tomorrow I will be sick, but that's okay. कल मुझे बुखार आएगा जोर से, but तबीयत that's तो okay. नहीं खराब हुई ना? अभी कल पता चलेगा. Last time तो I got a very high fever, but it's fine. One day के लिए ही था, then उसके बाद I was okay. But I got my second dose and अभी सब ठीक है, छुट्टी मिल गई. दोनों लगवा के. Okay, amazing. I'm seeing some videos on. Anjali ma'am, how are you? Evening, Didi. Good afternoon, Rohan and Raj. Where is Mama? Hi, Didi. Hi ma'am, how are you? I'm fine. So happy to see you today. Thank you Hi, for Didi. joining. Hi. Hello ma'am. Hi, Didi. Hi everyone. Farhana ma'am is also here, which is amazing. More people are joining our class, which is a great thing. So it's amazing that so many of us want to learn English. ठीक है. We have 12 people right now. We can wait till 4, 5. One more minute we'll wait, and then I'll actually start with the phonics because we have a lot of work. So don't want to waste any time. Okay, Manthan's mama is also here. हेलो फरहाना मैम, मैं गार्गी हूँ. मैं पढ़ाती हूँ इंग्लिश और अभी हमारा 3rd क्लास है और अभी हमने स्टार्ट ही किया है. अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ भी आपको मुश्किल लग रहा हो तो आप पूछ लीजिएगा. ओके. हेलो मैम. हाय जारा की मम्मा, हाउ आर यू? Hi. How are you, ma'am? I'm good. I'm doing great. How are you doing? How are you doing, ma'am? Happy to see your face. How are you, ma'am? Okay, ma'am is frozen. No problem. Muzna is also here from her device. Nice. People have joined. The 2 people from one house have joined. Great. Amazing. Manthan की मम्मा. Hi, ma'am. क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? Yes, Didi. कैसे हैं आप? How are you? Happy. Happy. Great. Thank you, ma'am. Thank you for sharing. Anjali ma'am, आप बताइए, how are you? Anjali ma'am? I don't think she can hear me. Okay. Amazing. Rashid की मम्मा, are you here? हाँ, अंजलि मैम, how are you? आपको आवाज आ रही है अब मेरी? हाँ दीदी, fine. Fine. Okay, thank you. Hi, Rehana ma'am, how are you? I'm fine. Thank you for joining. Amazing. Okay, great. We can actually begin now. We have almost everyone that we were waiting for, so we can start. I will share my screen. मैं अपना screen share करूंगी. हम लोग हमेशा की तरह. First of all, I'm so happy and proud कि आप सब लोगों ने English में greet किया एक दूसरे को. Very well done. बहुत अच्छा लगा सुन के. अभी हम start करते हैं हमारी class. Okay, and we are going to start with the phonics drill like always. हम पहले phonics revise करेंगे. And then we will do the topics for today. Okay, so I'm going to share my screen and we will do a phonics drill together. Okay, can everybody see my screen? क्या सबको मेरी screen दिख रही है? Yes, Didi. Yes, Didi. Great, amazing. Yes. Okay, so we will start with our phonics drill. Okay, now we all know phonics very well. So I will say and I want everyone to say it with me. हम सभी लोग साथ में ड्रिल करेंगे क्योंकि अब हम लोग को ड्रिल पता चल गई है, तो we will do it together. Okay, तो हम लोग, मैं 3, 2, 1 गो बोलूंगी and then we will come off mute and हम साथ में ड्रिल करेंगे. तो सारे ही लोग ऑफ म्यूट आ जाएं एंड जैसे ही मैं गो बोलूंगी वैसे ही हम स्टार्ट करेंगे. ओके, 3, 2, 1 गो.
Very well done, everybody. Now, one more thing we will do this time. I will not say anything. Now, I'll just observe everyone. मैं सिर्फ observe करूंगी कि सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ठीक है? तो महजबीन मैम, राशिद की मम्मा, everyone, इकरा की मम्मा, सब लोग अपने आप को म्यूट से हटा ले. सूर्या मैम और सोहम की मम्मा, सब लोग रेडी रहे. एक बार फिर से करते हैं एंड देन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. ओके, 3, 2, 1, go. Amazing. Very well done. शायद कोई लोग Z के साउंड को ज बोल रहे थे. Z का साउंड इज सिर्फ ज बोलना है, और नहीं बोलना है, सिर्फ ज बोलना है. ओके, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा था. वेरी वेल डन एवरीबडी. थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेट करने के लिए. थैंक यू. हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो हम लोग ये रिवाइज करते हैं. किसको यहाँ पे वावल्स याद है? क्या होता है वावल्स? Who remembers vowels? नूरजहां मैम. Yes, दीदी. Vowel is 5, दीदी. Yes. क्या होता है? A-E-I-O-U. Amazing. Very good. A-E-I-O-U. Amazing job, मैम. Vowels होते हैं A-E-I-O-U. वो इंग्लिश की 12 खड़ी होती है, राइट? सो एंड बाकी सारे वर्ड्स जो वावल्स को हटा के उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं. जो वावल्स होते हैं वो मेन होते हैं. A-E-I-O-U. ओके, ग्रेट. सबको याद है ना ये A-E-I-O-U? हाँ, ओके, अमेजिंग. तो ये हमें याद है. बिफोर आई मूव टू द टॉपिक फॉर टुडे, मुझे एक्चुअली पूछना है आप लोगों से. आप लोगों को नाउन्स याद है ना, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे? नाउन्स, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन. आप लोगों को उसमें कोई डाउट्स तो नहीं है? ओके, अमेजिंग. तो मैं क्विक रिवीजन लेती हूँ. कौन मुझे बता सकता है नाउन में क्या क्या आता है? नाउन्स क्या होते हैं? कौन मुझे समझा सकता है अपने वर्ड्स में? ओके, नूरजहां मैम फिर से हैंड रेज करें, पर मैं अब देखती हूँ किसी और तक अगर आ रहा हो तो. किसी को भी आप बताना. ज़ारा की मम्मा बताएंगे आप? नेम प्लेस एनिमल. ज़ारा की मम्मा फ्रोजन हो गए. हाँ मैम, आप बताना चाहेंगे कि नाउन्स क्या होते हैं? मम्मा मैं बोलूं? यस मैम, यस. हाँ जी. जो नाम को बताता है किसी चीज को, उसको नाम कहते हैं. करेक्ट. जैसे नाम किसी जगह में जो नाम होता है उसे नाउन्स कहते हैं. करेक्ट मैम, वेरी गुड, एक्सीलेंट. नाउन्स वो होते हैं. तो मम्मा आप ऑफलाइन क्लास में नहीं आ पाए थे, तो मैं इसलिए एक बार जल्दी से रिवाइज करा रही हूँ सबका, जो अगर किसी ने ऑफलाइन क्लास नहीं आ पाया था उनके लिए, कि नाउन्स होते हैं वर्ड्स, राइट? तो किसी भी इंसान का नाम या किसी भी एनिमल का नाम या जगह का नाम या कोई चीज का नाम, सारे नाउन्स कहलाते हैं. हाय सोहम, मम्मी कहाँ है आपकी? दीदी इधर फोन पे बात कर रही. अच्छा, ओके, ठीक है. तो नाउन्स नेमिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे कि इंसान का नाम, प्लेस का नाम, जगह का नाम या फिर चीज का नाम, राइट? और नाउन्स 2 तरीके के होते हैं. कौन बताएगा मुझे 2 तरीके कौन से होते हैं? सॉरी, 2 टाइप्स कौन से होते हैं नाउन्स के? दो टाइप्स क्या होते हैं नाउन्स के? किसको याद है? रेहाना मैम. दीदी, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन. वेरी गुड. यस, अमेजिंग. प्रॉपर नाउन्स एंड कॉमन नाउन्स. कौन मतलब मुझे प्रॉपर नाउन का कोई एग्जांपल दे सकता है? मुझे प्रॉपर नाउन का कोई एग्जांपल जिसको भी याद है. शाहरुख खान. शाहरुख खान. यस, करेक्ट. शाहरुख खान इज प्रॉपर नाउन. यू आर राइट. और कॉमन नाउन का एग्जांपल कोई दे सकता है मुझे? कॉमन नाउन दीदी. यस मैम. पेपर, हॉस्पिटल, बॉटल, पेपर.
Perfect. बहुत सारे सामान Perfect. Perfect. Bottle, newspaper, all of them are common nouns. Very good. Great. Thank you so much, Common मैम. noun बोलते हैं। Proper noun, common noun का अंतर हम समझते हैं. Very good. और nouns एक बहुत बहुत important part है इंग्लिश का, क्योंकि आप रोज की भाषा में जब आप इंग्लिश बोलते हैं बहुत सारे nouns का इस्तेमाल होता है, राइट? तो nouns हमें समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है. हम धीरे धीरे करके और भी पार्ट्स पढ़ेंगे सेंटेंसेस के. अभी हमने nouns पढ़ा है. आज की क्लास में हम एक्चुअली ग्रामर की बजाय हम थोड़ा सा रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे. तो आज हम लोग साथ में पढ़ेंगे और हम लोग हमारी सारी स्किल्स यूज करेंगे जो भी हमने इस हफ्ते सीखी है, और वो स्किल्स को इस्तेमाल करके वी आर गोइंग टू रीड अ स्टोरी टुगेदर. तो वो हम आज करने वाले हैं. पर वो करने से पहले हम लोग एक क्विक रिवीजन लेते हैं साइट वर्ड्स का. ठीक है, हम लोग हर क्लास में 5-10 साइट वर्ड्स करते हैं. साइट वर्ड्स क्या होते हैं, आपको याद है साइट वर्ड्स क्या होते हैं? यस दीदी. सीता मैम बताएंगे आप? अच्छा, सूर्या मैम बताइए. ओके. हाँ, सूर्या मैम बताइए. He, it, he, me, the, Beautiful. and, there, this, Correct. have, there, we, he, and, how, are, you, after, has, her, again, away, any, has, every. लवली लवली. थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग मैम. आपने पूरा पढ़ के सुनाया एंड आपके प्रोनाउंसिएशन, सारे प्रोनाउंसिएशंस करेक्ट थे. रियली रियली वेल डन. मुझे सबसे अच्छा लगा सुन के जब आपने हियर बोला और हर नहीं बोला. सो वेरी वेरी वेल डन. थैंक यू सो मच. साइट वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली, बहुत ज्यादा आते हैं वर्ड सेंटेंसेस में, पर उनके थोड़े से प्रोनाउंसिएशन, उनका बोलने का तरीका थोड़ा अलग होता है. तो हमें इसलिए बार बार उनको बोल के प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि हम इजीली पढ़ पाए. ओके, तो यहाँ पे हम सब लोगों को चांस मिला थोड़ा सा होमवर्क कंप्लीट करने का. यहाँ पे कितने लोगों को चांस मिला करने का, आप हैंड रेस करके बता सकते हैं. ओके, नूरजहां मैम ने किया होमवर्क कंप्लीट. दीदी जो आपने वर्कशीट दी थी वही ना? यस मैम, यस. वो तो दीदी मैंने आज करी. नो प्रॉब्लम मैम, जब भी करेंगे. आपने करा बस वही काफी है. ओके, हाँ लेकिन किया मैंने भी किया. अमेजिंग. सूर्या मैम ने भी किया. मुस्कान. ओके, लॉर्ड ऑफ पीपल. सरिता मैम आपको चांस मिला? ओके, आपने भी किया. ग्रेट, थैंक यू मैम. सीता मैम. मैम लक्ष्मी मैम आपको चांस मिला करने का वर्कशीट? ग्रेट. अभिनव की मम्मा तो नहीं आए थे, पर मैम आप पीडीएफ करने का चांस मिला आपको? पीडीएफ मैंने भी भेजा था व्हाट्सएप. लोग नहीं आए थे, वो पीडीएफ देख के भी कर सकते थे. तो अगर आपको नहीं चांस मिला, नो प्रॉब्लम. आप कोशिश करेगा एक बार आज बैठने की, थोड़ी देर 15-20 मिनट में हो जाएगा इजीली. और यहाँ पे कितने लोग प्रैक्टिस कर पाए गूगल बोलो में? क्या एक्सपीरियंस रहा आपका गूगल बोलो में रीड करने का? आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजे थे मुझे, बड़े प्यारे प्यारे स्क्रीनशॉट भेजे थे अपने स्टार्स के, जो देख के मुझे बहुत खुशी हुई. तो आप लोग का कैसा था एक्सपीरियंस रीड करने का? कोई शेयर करना चाहेगा? बहुत अच्छा लग रहा है दीदी. लक्ष्मी मैम आप बताएंगे? अच्छा लग रहा है दीदी. अच्छा लग रहा है रीड करके? उसमें ना वो लड़की छोटी सी लाजवाब, अच्छा पढ़ा. Actually वो बोलते रहती है ना बार बार, आपने हाँ. बहुत बढ़िया किया, हाँ, पढ़ा, उससे बहुत अच्छा लगता है ना. फास्ट पढ़ा, तो हाँ. अच्छा लगता है. हाँ, अमेजिंग अमेजिंग. थैंक यू मैम बताने के लिए. लक्ष्मी मैम. गलती भी हो जाती है तो भी वो शाबाशी दे देती है. करेक्ट करेक्ट. बहुत बहुत अच्छा है वो ऐप. बहुत अच्छा है, बहुत इजी भी है इस्तेमाल करने के लिए. थैंक यू लक्ष्मी मैम. हाँ दीदी. माँ शेयर करने के लिए. बाकी पेरेंट्स, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा गूगल बोलो में रीड करने का? जिन्होंने भी किया, बहुत लोगों ने ट्राई किया है मुझे पता है. अच्छा लगा ट्राई करके. अच्छा लगा सरिता मैम. थैंक यू बताने के लिए. मंथन की मम्मी, मैंने भी किया. आपने भी किया? वेरी गुड मैम. आप एकदम टाइम पे होमवर्क भी भेजते हैं. आप एकदम स्टार स्टूडेंट. और मंथन की मम्मा आप? यस दीदी, मैंने भी किया. अच्छा, वेरी गुड. हाँ, बहुत अच्छा थैंक यू लगा. मैम. थैंक यू मैम. ग्रेट. थैंक यू पेरेंट्स रीड करने के लिए, होमवर्क कंप्लीट करने के लिए समय निकाल के. बहुत अच्छा लगता है आपको जब होमवर्क सेंड करते हैं. और आप लोगों को बच्चे फीडबैक दे रहे हैं? हाँ दीदी. बच्चे फीडबैक दे रहे हैं आप लोग? फीडबैक दे रहे. हाँ. ओके. कभी कोई ऐसा इश्यूज आए ना तो आप मुझे बताइएगा, फिर मैं अरेंज कराती हूँ. हाँ. हाँ. ओके, अमेजिंग. बहुत अच्छा लगा जान के कि क्या हो रहा है, अपडेट्स पाके. अब मैं आगे बढ़ती हूँ. मुझे बस आप लोगों से पूछना था कि कैसा था आज 2-3 दिन से एक्सपीरियंस गया. ओके, तो वावल्स भी हमें याद है, हमने फोनिक्स भी कर लिया है. अब हम साइट वर्ड्स पे आते हैं जैसे हम हमेशा करते हैं.
एक बार मैं क्या करूंगी, एक बार मैं सारे साइट वर्ड्स आपके लिए करके आपको सुनाऊंगी, ताकि आप लोगों को सारे प्रोनाउंसिएशन, अगर आपको किसी भी शब्द को बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है देख के, तो मैं एक बार आपको सब बोल के एकदम क्लियरली बताती हूँ। उसके बाद हम लोग साथ में एक ड्रिल करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ इन 3, 2, 1। अभी सिर्फ मैं बोलूंगी और आप सुनिएगा। ओके, फिर हम एक बार साथ में करेंगे। 3, 2, 1, आई स्टार्ट। IS is, IT it, she SHE she, me ME me, the THE the, am am, here HERE here, this THIS this, a have AVE have, there THERE there, we WE we, he, an how HOW how, ARER। अब मैं यहाँ स्टॉप करती हूँ। अब हम ये लाइन साथ में एक बार रीड करते हैं, फिर मैं नेक्स्ट लाइन पे जाऊंगी। ओके, सो सारे मदर्स एक बार हम प्रैक्टिस करते हैं। अभी मैं 3, 2, 1 गो बोलूंगी, सभी लोग ऑफ म्यूट आइएगा। सिर्फ हम लोग लेटर को, मतलब सिर्फ वर्ड को बोलेंगे, स्पेलिंग बोलने की जरूरत नहीं है। सो वील जस्ट से ऐसे बोलेंगे, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं इन 3, 2, 1। सारे लोग ऑफ म्यूट आ जाए प्लीज। ओके, एंड स्टार्ट करते हैं 3, 2, 1 गो। Very good, very good, perfect, really well done everybody. Thank you so much रीड करने के लिए। अब मैं सेम चीज करते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए। पहले मैं एक बार सब वर्ड्स रीड करके आपको क्लियरली प्रोनाउंसिएशन बता दूंगी, उसके बाद हम लोग साथ में वो लाइन पढ़ेंगे। ओके, सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, रीड करना। आप लोग ध्यान से सुनिएगा कैसे रीड करती हूँ। फर्स्ट वर्ड यू, YOU यू, आफ्टर AFTER आफ्टर, has HAS has, her HER, again AGAIN again, away AWAY away, any ANY any, as AS as, every EVERY every, fly FY fly, from FROM from, give GIVE give, over OVER over। I'll stop here and हम लोग अब फिर से वही सेम चीज प्रैक्टिस करते हैं। ऑल हम सब ऑफ म्यूट आएंगे एक साथ, एंड हम लोग अब सारे वर्ड्स को एक बार बोल के देखेंगे। सिर्फ वर्ड्स बोलेंगे, स्पेलिंग नहीं बोलेंगे, ठीक है। इन 3, 2, 1 गो। You after again away any as every, fly from give over। Amazing, beautiful, very very well done everyone, thank you so much रीड करने के लिए। मैं अब सेम चीज कर रही हूँ नेक्स्ट लाइन के लिए। मैं एक बार रीड करके आपको बता रही हूँ, एंड फिर आप लोग उसके बाद उसके बाद हम लोग एक बार साथ में करेंगे। ओके, आई एम स्टार्टिंग। पुट, PUT पुट, राउंड ROUND round, JUST just, no KNOW no, let LET let, live LIVE live, may MAY may, off OF off,
old, OLD, old. Once, ONCE, once. Once है ये, okay. Open, OPEN, open. Stop, STOP, stop. Take, TAKE, take. ओके अब मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ फिर से एंड वी विल रीड द थिंग टुगेदर नाउ. अभी सारे मदर्स फिर से ऑफ म्यूट आएंगे एंड हम लोग इसको रीड करेंगे. ओके सो 3, 2, 1 एवरीवन लेट्स कम ऑफ म्यूट प्लीज. एक बार ऑफ म्यूट आते हैं एंड साथ में रीड करते हैं. 3, 2, 1 गो. Put. Round. Yes. No. Let. Live. Old. Once. Open. Stop. Take. वेरी गुड. बहुत फास्ट कर रहे हैं आप लोग. रियली वेल डन. अमेजिंग. 2 more lines, 2 और लाइंस करेंगे एंड फिर वी विल बी डन विद साइट वर्ड्स फॉर टुडे. ग्रेट. आप बहुत अच्छा कर रहे हैं. बहुत जल्दी कर रहे हैं. तो अमेजिंग. ठीक है. आई विल रीड द सेकंड लाइन नाउ. 3, 2, 1 आई विल स्टार्ट. थैंक, THANK, thank. Them, THEM, them. Then, THEN, then. Think, THINK, think. Walk, WALK, walk. Were, WERE, were. When, WHEN, when. About, ABOUT, better, BETTER, better. Bring, BRING, bring. Grow, GROW, grow. Okay, I will stop and let's practice once again. Everyone, let's please come off mute. साथ में ऑफ म्यूट आता है और इसको फिर से हम रिपीट करते हैं. ओके 3, 2, 1 go. Thank, Them. then, walk, when, about, better, grow. Amazing. Very well done everyone. बहुत अच्छा रीड किया as always. लास्ट टाइम फिर हमारा इस हफ्ते बहुत सारे साइट वर्ड्स, ये हमने सारे वर्ड्स इसी हफ्ते करे हैं. सो इतने सारे हमने ऑलमोस्ट एक पैराग्राफ भर के वर्ड्स कर लिए हैं इस हफ्ते. सो रियली वेल डन. लास्ट दो करते हैं साथ में, फिर नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे. ओके लेट्स स्टार्ट. आई विल स्टार्ट फर्स्ट. आई विल रीड इन 3, 2, 1. आई विल स्टार्ट. ओन, OWN, own. Pick, PICK, pick. CARRY, carry. Done, DONE, done. Could, COULD, could. Would, WOULD, would. Should, SHOULD, should. Shall, SHALL, shall. Show, SHOW, show. और लास्ट laugh, LAUGH, laugh. ओके नाउ ये हो गया है. अब हम लोग एक बार साथ में इसको रीड करते हैं. थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये कुल्ड वुल्ड शुल्ड नहीं है. ये एल इसमें है जरूर पर एल को हम बोलते नहीं है. हम सिर्फ एल साइलेंट होता है. हम कुड बोलते हैं. शुड. ठीक है. तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है पर हाँ इसको ध्यान में रखते हैं. ओके अभी हम साथ में पढ़ते हैं लास्ट वाला इन 3, 2, 1 गो. Own, pick, carry, done, would, should, shall, laugh. Amazing. लास्ट का थोड़ा टफ है पर आपने बहुत अच्छा किया. तो एक स्माइली फेस है आपके स्क्रीन पे आप सब लोगों के लिए. रियली वेल डन. बहुत अच्छा. ओके
सो ग्रेट, हमने साइट वर्ड्स इतने सारे पैराग्राफ भर के साइट वर्ड्स, आई थिंक अराउंड 45-50 साइट वर्ड्स तो हमने कर लिए सब। रियली वेल डन एवरीवन। अभी आप बताइए, एक बार साइट वर्ड्स को फिर से एक बार देखना है कि आप लोग कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं और नेक्स्ट पार्ट पे जाने के लिए। नेक्स्ट पार्ट, ओके, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट दीजिए। ठीक है। ओके, यहाँ पे लोगों को ब्रेक चाहिए 3 मिनट का, या फिर हम लोग स्टार्ट कीजिए। दीदी Okay, लास्ट की next. लाइन और एक बार बता देते तो। हाँ जरूर जरूर मैम, जरूर। हाँ थोड़ा लास्ट की मुश्किल लाइन है। बता रही हूँ। हाँ जी बिल्कुल, मैं एक बार रीड करती हूँ, आप सुनिए, फिर एक बार आप लोग प्रैक्टिस करिए। ओके, ओन, सॉरी, हाँ, ओन, पिक, कैरी, डन, कुड, COULD, कुड, would, 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 should, 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 shall, 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 show, SHOW, and laugh, LAUGH, laugh. ओके, एक बार आप लोगों को करना है लास्ट लाइन, सिर्फ ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। हाँ जी। हाँ, एक बार थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हल्का सा, से एक बार करते हैं। ओके, 3, 2, 1 स्टार्ट। ओन, on, पिक, pick, कैरी, डन, would, would, should, shall, shall, show, laugh, laugh. ग्रेट, थैंक यू सो मच नूरजा मैम, आप आगे से डाउट पूछना है, बहुत अच्छा लगा देख। अब आप लोग बेझिझक पूछिए, जितना भी जो भी डाउट लग रहा है। हम लोग अगर 4 बार भी पढ़ेंगे, 4 बार भी पढ़ना है तो भी मैं खुशी खुशी पढ़ाऊंगी। आप लोग बेझिझक पूछिए जो भी पूछना है। ओके, अमेजिंग, ग्रेट। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, अगर सब कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं तो। आई विल शेयर माय स्क्रीन। ओके, तो अभी हम लोग एक क्विक रिकैप करते हैं। इस हफ्ते हमने जो भी पढ़ा है, हमने काफी सारी चीजें पढ़ी हैं, तो ये 5 मिनट के रिकैप में आप लोगों को सभी चीजें जो भी हमने इस हफ्ते पढ़ी हैं आपको सब याद आ जाएंगी। तो हम लोग इस कर रहे हैं। तो पहली चीज जो हमने इस हफ्ते करी थी वो थे साउंड्स, राइट। हमने मंडे को ब, क, ड और AEIOU के साउंड्स पढ़े थे, राइट। कितने लोगों को ये याद है? हमने ब, क, ड पढ़ा था, किया था। ब्लेंड सेगमेंट आपको याद है? ब्लेंड मतलब जोड़ना, सेगमेंट मतलब तोड़ना। आप लोगों को याद है? हाँ, ओके, कोई कोई लोगों ने बोला यस दीदी। मुस्कान मैम आपका हैंड रेज्ड है, बोलिए मैम। जो हम लोग पढ़े थे। करेक्ट, तो ब्लेंडिंग का मतलब याद है आप लोगों को? हाँ, ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है मैम, बताएंगे? जोड़ना, वेरी गुड। सेगमेंटिंग मतलब तोड़ना। वेरी गुड, एक्सेलेंट। ब्लेंडिंग और सेगमेंटिंग हमने किया था, किसके लिए किया था? सिर्फ 3 साउंड के लिए किया था, ब, क, ड और वावल्स। तो ये वाले साउंड्स हमने किए थे। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं एक एक करके नाम बुलाऊंगी, जिनका नाम बुलाऊंगी उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आके एक वर्ड रीड करें हमारे लिए, ताकि हमें ये सारे साउंड एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। ओके, क्विकली एकदम फटाफट करेंगे हम लोग ये। तो स्टार्ट करते हैं रिहाना मैम से। रिहाना मैम, फर्स्ट वर्ड पढ़ेंगे आप। बैट। वेरी गुड, ब एट अ बैट, अमेजिंग, थैंक यू मैम। मुस्कान, नेक्स्ट वर्ड पढ़ेंगे। वेरी गुड, फैबुलस, नेक्स्ट वर्ड भी हो गया। मंदन की मम्मी, थर्ड वर्ड। ये वाला थर्ड वाला। मुझे बोले क्या? हाँ जी, हाँ जी मैम। RAT, रैट। वेरी गुड मैम, फैबुलस, थैंक यू। लक्ष्मी मैम, फोर्थ वर्ड पढ़ेंगे। मैट। मैट, राइट। हाँ, मैट, वो ए का साउंड होता है ए, तो उसको जोड़ेंगे तो एट, मैट। वेरी गुड, थैंक यू सो मच मैम। जारा की मम्मा, नेक्स्ट वर्ड पढ़ेंगे। CAD, कैड, वेरी गुड, थैंक यू मैम। सोहम की मम्मा, ये वाला पढ़ेंगे। BAD, बेड। ब एट ड, बैड।
हाँ, एक चीज मुझे बस आप सब लोगों को बतानी है कि जब हम ए पढ़ते हैं तो ए का sound होता है ए, ओके, ए का साउंड ए होता है, अ नहीं, आ नहीं, ए, ठीक है। बाकी सब बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, अमेजिंग। नूरजहां मैम नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे आप, ये वाला डैब। वेरी गुड मैम, फैबुलस, थैंक यू। अंजलि मैम ये वाला पढ़ेंगे, अब म्यूट पे। COB। हाँ, COB क्या बनेगा? हाँ, क और ब, इसको जोड़िए, कॉब, वेरी गुड। तो क और ब ऐसे हम हाथ से जोड़ सकते हैं, क और ब बनता है कॉब, वेरी गुड मैम, थैंक यू। अलग सरिता मैम ये वाला पढ़ेंगे, AB, अब, एब, है अब, ना? हाँ, वेरी गुड मैम, थैंक यू। कौन बचा? सूर्या मैम ये पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला। सूर्या मैम आवाज आ रही है आपको? आप म्यूट पे हैं। हाँ, कैब, कैब, परफेक्ट। वो ई है तो वो ए होगा, ए तो कैब, हाँ, वेरी गुड, थैंक यू मैम। इकरा की मम्मी मेजबीन मैम ये वाला पढ़ सकते हैं, नेक्स्ट वर्ड। नहीं बेटा। हाँ मैम, कॉप, ब और क क्या बनेगा? बॉक, ये वाला, ये वाला मैम, BOC, BOC, बॉक, बॉक, करेक्ट, एक्सीलेंट, थैंक यू मैम। कौन बचा? हाँ, मैम नेक्स्ट वन पढ़ेंगे यार। सीता मैम जी, मैम ये वाला पढ़ेंगे, हाँ, ब ओ ब ब, ब अ ब, ब बैब, बब, बब, हाँ, बब, राइट। और यू का साउंड होता है अ, तो ब का साउंड ब, तो ब अ बब, राइट, परफेक्ट, थैंक यू मैम। अभी रूपा मैम नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे, ये वाला किड, परफेक्ट। राशिद की मम्मी नेक्स्ट वन। दीदी स्क्रीन नहीं दिख रही है। ओ, स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको? नहीं। अयो, मैं चैट पे लिखूं, नेक्स्ट वर्ड आप चैट से पढ़ सकते हैं। DID क्या होगा मैम? जोड़ेंगे इसको, क्या आप कैसे बोलेंगे DID को? राशिद की मम्मी, DID पुलाव बनेंगे। E D ड, हाँ, ड क्या बनेगा? डिड। डिड, वेरी गुड, तो परफेक्ट। दिख ही नहीं रहा है तो समझ ही में नहीं आ रहा है कुछ। हाँ मैम, नहीं वो कोई बात नहीं, मैं फोटो भेजती हूँ आपको 1 मिनट में, वेरी गुड, डिड। रेशमा मैम लास्ट वर्ड आप पढ़ सकते हैं। डेड, डेड, वेरी गुड, परफेक्ट, थैंक यू सो मच एवरीवन। सब लोगों को चांस मिला रीड करने का यहाँ पे? हाँ, लवली। मैं बस देख रही हूँ कोई मिस आउट, फरहाना मैम को नहीं मिला, फरहाना मैम और अनस की मम्मा को नहीं मिला, ठीक है, तो मैं 2 वर्ड ऐड करती हूँ। फरहाना मैम या अनस की मम्मा आप आएंगे? ये एक वर्ड मैंने लिखा है स्क्रीन पे, अनस की मम्मा आप रीड करना चाहेंगे? दीदी एनोटेशन का मार्क दो ना। कौन है ये? दीदी राशिद। हाँ, मैं दे रही हूँ राशिद, एक मिनट, मुझे ना ये पहले, उसके पहले अनस की मम्मा से बोलना है कि ये वर्ड पढ़े, DOB,
कैसे पढ़ेंगे इसको? DOB, DOB डब। डॉब। वेरी गुड मैम, थैंक यू। फरहाना मैम, अगर आप यहाँ पे हैं, क्या आप हमारे लिए पढ़ना चाहेंगे? BIB, बी का साउंड होता है ब, ई का साउंड आई का। हाँ जी, बोलिए मैम। BIB, बिब, परफेक्ट। थैंक यू सो मच फरहाना मैम। फरहाना मैम ने बोला कि किसी और ने बोला? अच्छा, मुझे लगता है उन्होंने बोला, मैं श्योर नहीं हूँ। ओके, अमेजिंग, थैंक यू सो मच। सब लोगों को चांस मिला। राशिद, मैंने एनोटेशन का दे दिया है। हाँ, ओके, हाँ दीदी चालू हुआ। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने अभी हमने वर्ड्स रिवाइज कर लिए जो हमने इस वीक करे थे। अब हम लोग ने दूसरी चीज क्या करी थी? हमने किया था कॉन्वर्जेशन स्टार्टर्स, राइट? तो हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू फीलिंग, हाउ वाज योर डे, गुड टू सी यू टुडे, ये हमने कॉन्वर्जेशन स्टार्टर्स भी सीखे थे। सो व्हेन वी से हाउ आर यू डूइंग, व्हाट डू वी मीन? हाउ आर यू डूइंग का मतलब किसको याद है? कौन बताना चाहेगा? हाउ आर यू डूइंग का क्या मतलब होता है? यहाँ पे किसी को शेयर करना है? कैन आई टैग? यस, नूरजहां मैम बोलिए। I am doing well. आई एम डूइंग वेल, अमेजिंग, परफेक्ट। एंड मैम, हाउ आर यू डूइंग का मतलब क्या होता है? आप कैसे हो? लवली, आप कैसे हो, क्या चल रहा है? वेरी गुड, थैंक यू मैम। और आपने आंसर भी दे दिया उसका। ग्रेट। और हाउ आर यू फीलिंग का मतलब कौन बताएगा मुझे? तुम कैसा फील करते हो? लवली, परफेक्ट। तुम क्या फील कर रहे हो, तो क्या बोल सकते हैं मैम उसके रिप्लाई में हम उन लोगों को? यस, हाँ, बोलिए मैम। I am feeling happy. आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम फीलिंग टायर्ड, आई एम फीलिंग फीलिंग सैड। आई एम फीलिंग हैप्पी। जो भी हमारी, जैसा भी हम फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वी कैन शेयर। ओके, एंड हाउ वाज योर डे? जारा की मम्मा, इसका क्या मतलब? हाउ वाज योर डे? क्या बोला दीदी? कैसा है? हाउ वाज योर डे अगर कोई पूछता है आपसे, तो क्या उसका मतलब क्या होता है? हाउ आज का दिन, हाउ आर यू अ डे, आपका दिन आज का कैसे दिन करेक्ट, हाउ आर यू कैसे हो, और आपका दिन कैसा गया? परफेक्ट, परफेक्ट। एंड अभिनव की मम्मा, क्या आप बता सकती हैं कि, थैंक यू जारा की मम्मा। तो अभिनव की मम्मा, क्या आप बता सकती हैं कि जब आप कोई हमसे पूछता है हाउ वाज योर डे, हम उनको क्या रिप्लाई में क्या बोल सकते हैं? मेरा दिन अच्छा था। हाँ, सो माई डे वॉज गुड, डे वॉज इंटरेस्टिंग, माई डे वॉज नॉट गुड, माई डे वॉज टायरिंग। कुछ भी, आपका दिन बिजी था तो आप बोल सकते हैं माई डे वॉज बिजी। जैसा भी आपका है वैसे आप बोल सकते हो, राइट? ए इधर आना, मेरे को ये Perfect. बता। ओके। उसके बाद गुड टू सी यू और सी यू सून, इसका मतलब सरिता मैम आप बताएंगे क्या होता है? गुड टू सी यू सून, सी यू सून बोलता है, मतलब क्या मतलब होता है उसका? फिर मिलेंगे मैम। हम फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे, करेक्ट, लवली, अमेजिंग। तो हमें ये भी याद है, वेरी वेल डन एवरीबॉडी। फिर हमने पढ़ा था नाउन्स एंड प्रॉपर कॉमन नाउन्स, तो वो भी हमें याद हो। ऑफ पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस एंड थिंग्स, तो उसमें आता है प्रॉपर एंड कॉमन, राइट? प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल आपने बोला शाहरुख खान, श्री गीता विद्यालय। और कॉमन नाउन का एग्जाम्पल हमने बोला स्कूल, हॉस्पिटल, बॉटल। ये सब सारे कॉमन नाउन के एग्जाम्पल। ग्रेट, तो हमने ये भी कर लिया। मैं 1 सेकंड के लिए ये स्लाइड को रखती हूँ आपके स्क्रीन पर। आप लोग एक बार 10 सेकंड लेकर पूरी स्लाइड को देख लीजिए। हमने जितना भी, ये हमने पूरे हफ्ते की पढ़ाई है हमारी, जो भी हमने इस हफ्ते किया है। तो 5-10 सेकंड लेकर आप एक स्क्रीन को ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको कुछ लेना है जल्दी से, तो आप लिख भी सकते हैं। फिर एक 5-10 सेकंड के नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगी। ओके, एक बार मुझे थम्स अप दे दीजिएगा आप जब आप लोग रेडी होंगे तब। अगर आप लोगों ने स्क्रीन को देख लिया है, आपको सब एक बार से रिवाइज हो गया। ओके, रिहाना मैम थम्स अप दे रहे हैं। बाकी पेरेंट्स, बाकी मदर्स। ओके, अंजलि मैम भी रेडी है। मैम, फरहाना मैम, लक्ष्मी मैम, रेशमा मैम का हैंड रेज्ड है, पूछिए।
मुस्कान दरवाजा ना कड़ी लगाओ। बोलिए मैम। रेशमा मैम आपका हैंड रेज्ड है, आपको कोई डाउट है? ओके अच्छा नहीं है रेट। जारा की मम्मा आपका हैंड रेज्ड है, आप पूछिए। मैम हाँ दीदी बोलिए। आपका हैंड रेज्ड है, आपको डाउट है कुछ? नहीं दीदी, ओके ओके मैं तो ठीक ऐसे है। ट्राई कर रही थी। ओके ठीक है परफेक्ट। तो मैं आगे जाती हूँ। ठीक है अभी हम लोग थोड़ा सा वोकैबुलरी वर्ड सीखते हैं। ठीक है अभी हमने सब साइट वर्ड्स कर लिए, रिवीजन कर लिया, थोड़े नए वोकैबुलरी के वर्ड सीखते हैं। हमने लास्ट मंडे को हमने एनिमल्स सॉरी वेजिटेबल वर्ड्स सीखे थे, तो हम लोग बाकी वेजिटेबल वर्ड्स भी सीखते हैं। मैं एक बार अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ जल्दी से। हाँ ओके तो आप लोगों के साथ हमने ये कर लिया था, कैरेट्स पटेटो, कैरेट मतलब गाजर, पटेटो मतलब आलू, राइट? कैबेज, कैबेज किसको याद है? कैबेज किसको याद है? क्या बोलना था? गोभी। रिहाना मैम? हाँ दीदी गोभी। बंद गोभी। गोभी। फूल गोभी। हाँ हाँ परफेक्ट परफेक्ट। बंद गोभी। हाँ टमेटोज किसको याद है? काय टमाटर परफेक्ट। फिर ये टमाटर। क्यूकम्बर, कंबर, खीरा, खीरा परफेक्ट, खीरा ककड़ी है ना। फिर अनियन क्या होता है? प्याज, परफेक्ट। ये क्या है? ये वाला गार्लिक, लहसुन, सरिता मैम को सब याद है, गार्लिक परफेक्ट। ये क्या है? ये पालक को इंग्लिश में क्या किसको याद है? थोड़ा टफ है ये वाला। लेटिस इंग्लिश में लेटिस कहते हैं, पालक है हिंदी में पालक, इंग्लिश में लेटिस। ठीक है फिर ये नया वाला पढ़ते हैं अब हम। ये क्या है? ब्रिंजल या एग प्लांट, करेक्ट, दोनों करेक्ट है, वेरी गुड अमेजिंग। ये क्या है? मशरूम, वेरी गुड, मशरूम है ये। ये क्या है? कैप्सिकम, इसको पेपर भी बोलते हैं, बहुत लोग पेपर भी कहते हैं इसको, बेल पेपर, पर आप लोग कैप्सिकम बोल रहे हैं तो वो भी चलेगा, कैप्सिकम भी राइट है। फिर ये क्या है? ये छोड़ दीजिए। हाँ ये कॉलीफ्लावर हो गया, कॉलीफ्लावर। क्या है? राजमा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बीन्स। ठीक है बीन्स, राजमा को इंग्लिश में बोलते हैं बीन्स। ठीक है ये क्या है? मटर को इंग्लिश में बोलते हैं पीस। मटर को इंग्लिश में बोलते हैं पीस। ओके ये छोड़ दीजिए। ये भी थोड़ा टफ है। ये स्पिनिच है, स्पिनिच को इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आई थिंक मुझे भी स्पिनिच की हिंदी नहीं, पालक। हाँ पालक हाँ बराबर। ये किसको पता है? पंपकिन करेक्ट, ये पंपकिन है, वेरी वेल डन। एंड ये छोड़ दीजिए। ठीक है तो हम अब इसको रिवाइज करते हैं, हमने बहुत सारे क्विकली मैं पूछूंगी जल्दी। सोहम की मम्मी आप बता सकते हैं टमाटर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टमेटो अमेजिंग। आलू को इकरा की माँ बताएंगे आलू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पटेटो। हाँ कोई बात नहीं इट्स ओके, हमें धीरे धीरे याद हो जाएगा। कद्दू का इंग्लिश उसको पता है? पंपकिन ओके मैम तो ओके पंपकिन। फिर राजमा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अमेजिंग। मटर को क्या बोलते हैं? मटर करेक्ट। गाजर को कैरेट। इसको क्या बोलते हैं?
जो पर्पल कलर का होता है क्या बोलते हैं उसको? बैंगन। बैंगन, बैंगन को क्या बोलते हैं? ब्रिंजल। ब्रिंजल, ब्रिंजल या एग प्लांट कुछ भी बोल सकते हैं। लवली। और बंद गोभी को क्या बोलते हैं? बंद गोभी? कॉलीफ्लावर। कैबेज। लवली। और फूल गोभी? कॉलीफ्लावर। करेक्ट, कॉलीफ्लावर। अमेजिंग, ग्रेट। और इसको क्या बोलते हैं? ये कैप्सिकम का हिंदी तो मुझे भी नहीं मालूम है, पर कैप्सिकम को कैप्सिकम ही बोलते हैं। शिमला मिर्च। शिमला मिर्च, हाँ शिमला मिर्च, हाँ शिमला मिर्च को बोलते हैं कैप्सिकम। अमेजिंग, ग्रेट। मैं पूछ रही हूँ कैप्सिकम को क्या बोलते हैं? कैप्सिकम। ओके, ओके। एक काम करते हैं, अभी हम लोग 5 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं बिफोर हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे जाएं, ठीक है? बिकॉज 48 मिनट से हम लोग पढ़ रहे हैं। मुझे तो बिल्कुल टाइम का पता नहीं चलता है जब मैं आप लोग की क्लास लेती हूँ, मुझे लगा ही नहीं है कि 48 मिनट्स हो गए। पर आप लोग 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, पानी पी के आइए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में स्टोरी स्टार्ट करेंगे। ओके, ओके दीदी। ओके, लवली, थैंक यू एवरीवन। थोड़ा ब्रेक मिलके आपको थोड़ा स्क्रीन से रेस्ट मिला। अब मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। लाइक आई सेड, आज हम लोग स्टोरी पढ़ने का ट्राई करेंगे, राइट? लक्ष्मी मैम, आपको आवाज आ रही है ना? लक्ष्मी मैम, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना? आ रहे दीदी। ओके, ओके, ठीक है। ओके, अमेजिंग। तो मैंने लाइक आई सेड थोड़ी देर पहले मैंने लोग आज स्टोरी पढ़ने का ट्राई करेंगे। तो स्टोरी पढ़ने के साथ साथ हम लोग थोड़े क्वेश्चंस भी आंसर करने की कोशिश करेंगे, राइट? ताकि हम लोग स्टोरी को बेहतर समझ सके। तो स्टोरी पढ़ने के साथ साथ हम स्टोरी समझ भी सके, इसलिए हम थोड़े से क्वेश्चंस भी आज आंसर करेंगे। ओके, तो उसके पहले हमारे लिए बहुत जरूरी है ये जानना कि कौन से तरह के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे क्वेश्चंस हम पूछते हैं, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, क्वेश्चंस हम पूछते हैं हिंदी में, इनको क्या कहा जाता है इंग्लिश में? पहले हम उस चीज को बैठाएंगे, उसके बाद हम एक स्टोरी साथ में रीड करेंगे। ओके, तो पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि सारे क्वेश्चंस वर्ड को क्वेश्चन बोला जाता है इंग्लिश में। तो क्या को बोलते हैं व्हाट। ओके, जब व्हाट पूछता है तो व्हाट मतलब क्या। ओके, व्हाट मतलब क्या, वाई मतलब क्यों, क्यों 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 का हिंदी होता है वाई। ओके, फिर कब की हिंदी होती कब की इंग्लिश होती है व्हेन। कौन की इंग्लिश होती है हु। कैसे, कैसे की इंग्लिश होती है हाउ। कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर। और कौन सा की इंग्लिश होती है। ठीक है, तो हमें ये एकदम अच्छे से याद रखना है, ताकि जब भी कोई हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है हमें पता चले कि वो हमसे क्या पूछ क्या रहा है, क्या, क्यों, ये इसकी इंग्लिश जानना हमारे बहुत जरूरी है। तो मैं एक बार और आप रिपीट करती हूँ, आप लोग ये पिक्चर्स आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं समझने के लिए कि क्या क्वेश्चन का है। ठीक है, तो मैं एक बार और आपके लिए बोलती हूँ, फिर हम लोग साथ में 2-3 बार इसको बोलेंगे। तो मैं एक बार बोल रही हूँ, आप लोग सुनिएगा। एक सेकेंड ना, क्लियर ऑलराइट। हाँ, व्हाट मतलब क्या, वाई मतलब क्यों, व्हेन मतलब कब, हु मतलब कौन, हाउ मतलब कैसे, वेयर मतलब कहाँ, मतलब कौन सा। ओके, कौन सा। हाँ, अभी हम एक बार साथ में आते हैं, साथ में बोलते हैं। सारे ममाज एक बार ऑफ म्यूट आ जाइए और हम एक बार इसको 2 से 3 बार रिवाइज करते हैं, क्योंकि इसको समझना हमारे लिए, इसको याद रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, व्हाट मतलब क्या से शुरू करते हैं। 3, 2, 1 गो। व्हाट मतलब क्या, मतलब क्या, वाई मतलब वे मतलब व्हेन मतलब कब, हु मतलब कौन, हाउ मतलब कैसे, वेयर मतलब कहाँ, विच मतलब कौन सा। लवली, अमेजिंग। एक बार फिर से करते हैं, ताकि बहुत सारे वर्ड्स है ना, तो इनको याद रखना जरूरी है। एक बार फिर से करते हैं, ठीक है। 3,
2 1 लेट्स स्टार्ट अगेन। व्हाट मतलब क्या, क्या मतलब व्हाई क्या, मतलब क्यों, व्हाई मतलब क्यों, व्हाई व्हेन मतलब मतलब कब, when मतलब कब, हु मतलब कौन, मतलब कौन, हाउ मतलब कैसे, कैसे, वेयर मतलब कहाँ, हाँ, विच मतलब कौन सा, कौन सा। लवली, अमेजिंग। अब मैं एक बार चुप रहती हूँ और आप लोग बोलिएगा, ठीक है। अब मैं देखती हूँ कि सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं, मैं ऑब्जर्व करती हूँ। तो आप लोग स्टार्ट करिए इन 3 2 1 गो। व्हाट मतलब क्या, मतलब वे मतलब व्हाई मतलब कब, फिर हु मतलब मतलब कौन, कैसे, हाउ मतलब कौन मतलब कौन, फिर दूसरा। लवली, अमेजिंग। थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करते हैं, ओके, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर मैं पूछती हूँ आपसे हु आर यू, तो मतलब मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे, हु आर यू, कौन, कौन, हाउ आर यू, आप कैसे कौन हो, नहीं, हु आर यू, हाउ आर यू, हु आर यू। तो हु मतलब कौन, राइट। तो हु आर यू पूछेगा आपसे, तो आपसे क्या पूछ रहा है, मतलब आप कौन हो, Who are you? कौन हो, आप कौन हो। तो आप क्या बोलोगे, आप अपना नाम बोलोगे, राइट। आई एम डैश, आई एम गार्गी मिश्रा, आई एम यादव, जो भी मेरा नाम है मैं वो बोलूंगी, राइट। अगर मैं आपसे पूछूंगी व्हाट आर यू डूइंग, तो मतलब मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे, आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, राइट। तो आप बोलेंगे आई एम लर्निंग इंग्लिश, राइट, मैं इंग्लिश सीख रही हूँ, अमेजिंग, करेक्ट। अगर मैं पूछूंगी आप लोग से, डूइंग का मीनिंग क्या, डूइंग डूइंग मतलब करना, करना, तो व्हाट आर यू डूइंग, हाँ आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, डू मतलब करना, ठीक है। फिर अगर मैं आपसे पूछती हूँ हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू, हाउ आर यू में क्या मतलब हुआ फिर, कैसे हो, करेक्ट, कैसे हो, राइट, आप कैसे हो, बिकॉज हाउ मतलब कैसे। फिर अगर मैं पूछती हूँ आपसे वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो? कहाँ पे रहते हो, करेक्ट। तो आप बोल सकते हो आई लिव इन शिवाजी नगर, आई लिव इन बैगनवाड़ी, जहाँ पे भी आप है वैसे आप बता सकते हैं, राइट। तो लिव मतलब रहना, वेयर मतलब कहाँ, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूंगी व्हेन व्हेन इज योर बर्थडे, मतलब आपका बर्थडे कब आता है, ठीक है, कब आता है आपका बर्थडे, तो व्हेन पे आप बताओगे कब, राइट। फिर अगर मैं आपसे पूछती हूँ विच वन इज योर फेवरेट कलर, मतलब बहुत सारे कलर है, विच वन इज योर फेवरेट कलर, तो मतलब मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे, आपका कलर कौन सा है, तो आपका पसंदीदा कलर कौन सा है, राइट, रेड ब्लू व्हाइट, कौन सा आपका पसंदीदा कलर है, तो which मतलब कौन सा, ठीक है। तो ये वर्ड्स हमें याद रखने बहुत जरूरी है। व्हाट मतलब क्या, वाई मतलब क्यों, हाउ मतलब कैसे, हु मतलब कौन, विच मतलब कौन सा, वेयर मतलब कहाँ, व्हेन मतलब कब, ये सब हमें दिमाग में याद रखना जरूरी है। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो आप मुझे बताइए, मैं फिर नेक्स्ट पार्ट पे जाती हूँ। ये क्लियर हुआ ना, ओके, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमें दिमाग में बैठ जाएगा, एज ऑलवेज, कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं पेरेंट्स, ये है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स जो हमारे स्टोरी में होते हैं। अब हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं, पर स्टोरी पढ़ने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि अलग अलग चीजें होती क्या है स्टोरी में, जो हमें समझनी बहुत जरूरी है स्टोरी को बेहतर समझने के लिए। तो एक तो होता है स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा स्टोरी का, वो होता है स्टोरी में कैरेक्टर। ओके, कैरेक्टर मतलब स्टोरी में क्या पर्सन कौन सा है, इंसान, जानवर, कोई भी हो सकता है कैरेक्टर में। स्टोरी में क्या कौन है स्टोरी में, उसको बोलते हैं हम कैरेक्टर, राइट। जैसे कि कोई मूवी का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कोई मूवी का नाम चक दे इंडिया, देखिए आप लोगों ने, यस दीदी, चक दे इंडिया में शाहरुख खान था, वो कोच था, राइट। फिर उसकी पूरी हॉकी टीम थी, इतनी सारी प्लेयर्स थे, हॉकी प्लेयर्स, वो सब लोग मूवी में कैरेक्टर्स थे, राइट, अलग अलग किरदार निभा रहे थे वो लोग, करेक्ट, यस दीदी, हाँ। तो उनको बोलते हैं कैरेक्टर्स, ठीक है। हर स्टोरी में कैरेक्टर्स होते ही होते हैं। तो एक तो होता है कैरेक्टर, जो आपको जानना बहुत जरूरी है, ओके। फिर दूसरी चीज होती है सेटिंग,
मतलब स्टोरी कहाँ पे और कब हो रही है। तो प्लेस और टाइम, स्टोरी का प्लेस और टाइम, उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सेटिंग। क्या कहते हैं? सेटिंग। सेटिंग। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल ले लूं, वही चक दे इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं, तो ज्यादातर स्टोरी कहाँ पे हुई थी? पूरी पूरी मूवी में वो पूरी मूवी में वो लोग हॉकी की फील्ड में खेल रहे थे, है ना? वो लोग बराबर हॉकी खेलते रहते थे, मैच खेलते रहते थे, तो पूरी की पूरी स्टोरी ज्यादातर उन लोगों की कहाँ पे दिखाई गई है? हॉकी के मैदान में, राइट? हॉकी के मैदान में। तो उस मूवी का मैदान प्लेस में। क्या है? हॉकी का मैदान। अब बहुत सारी स्टोरीज में अलग अलग जगहें होती हैं, अलग अलग जगहों पे वो स्टोरीज होती है। तो स्टोरी की जगह और स्टोरी में जो टाइम है उसको हम प्लेस और टाइम को क्या कहते हैं? सेटिंग कहते हैं। ये दूसरा एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारी स्टोरीज का। और तीसरी चीज होती है पेरेंट, जो हमें याद रखनी बहुत जरूरी है, वो है फीलिंग। फीलिंग। जो कैरेक्टर है स्टोरी में, जो भी कैरेक्टर है, जो भी है, वो क्या फील कर रहा है स्टोरी में, उसकी वो कैसा महसूस कर रहा है, वो भी मैं दिमाग में ध्यान में हमेशा रखूंगी कि वो कैसा फील कर रहा है। ठीक है? तो 3 चीजें हमने क्या सीखी? एक तो हो गया किरदार, कैरेक्टर, राइट? मतलब स्टोरी में कौन सा पर्सन है या एनिमल है या बच्चा बूढ़ा क्या है जो भी है, राइट? फिर दूसरा है सेटिंग, मतलब स्टोरी हो कहाँ रही है, प्लेस क्या है और टाइम क्या है। लास्ट फीलिंग, मतलब कैरेक्टर जो स्टोरी में है, जो लोग के बारे में स्टोरी है, वो कैसा फील कर रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स है अंदर की, उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है? स्टोरी पढ़ने के बाद। तो ये 3 चीजें आप लोगों को क्लियर हुई क्या? हाँ ओके। ये 3 चीजें आप लोगों को क्लियर हुई? जी। ओके, लवली। तो अभी हम लोग ये 3 चीजों की जो नॉलेज हमने अभी अभी गेन करी है, इसको यूज करते हुए अभी हम लोग एक स्टोरी साथ में पढ़ेंगे। और हम ये 3 चीजें बहुत ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये स्टोरी थोड़ी डिफिकल्ट लग सकती है हमें, पर मुझे लगता है कि आप लोग चैंपियंस हैं, तो अगर आपको थोड़ी डिफिकल्ट भी लगेगी तो भी आप लोग कर लेंगे इजीली। और अगर डाउट भी आएगा तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हम सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और एक दूसरे की हेल्प करेंगे, राइट? सो एक बार इस स्टोरी को रीड करके देखते हैं। और मैं क्या करूंगी, पहला पार्ट, तो स्टोरी छोटी सी स्टोरी है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसको मैं 3 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया हुआ है। ओके? पहला हिस्सा मैं आपको करके बताऊंगी, फिर दूसरा हिस्सा हम साथ में करेंगे, और तीसरा हिस्सा हम सब लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे। उसके पहले मुझे पूछना है कि क्या आप लोगों की एनर्जी अभी है स्टोरी करने की, या कुछ चाहिए कि मैं क्लास यहीं स्टॉप करूं? अगर आपको नहीं दीदी, स्टोरी ले लीजिए। स्टोरी ले लूं? हाँ दीदी। ओके, पक्का ना एवरीवन? हाँ दीदी। ओके ओके, अमेजिंग। मुझे नहीं चाहती कि आप लोग, मतलब अगर आप लोग को पूरा हफ्ता, अभी फ्राइडे है ना आज, तो पूरे हफ्ता बहुत, तो अगर ये लास्ट डे है हफ्ते का, तो अगर आप चाहते हैं तो मैं छोटी क्लास भी ले सकती हूँ, नो प्रॉब्लम। नहीं ले लीजिए। ओके, अमेजिंग। तो मैं लेती हूँ फिर। एवरीवन, थैंक यू सो मच। मैं फर्स्ट पार्ट मैं आपको करके बताती हूँ कैसे आंसर करते हैं, कैसे रीड करते हैं। फिर सेकंड पार्ट हम लोग साथ मिलकर करेंगे, थर्ड पार्ट हम सब खुद से करेंगे। सो आई विल शेयर माई स्क्रीन। लेट्स कीप दीज 3 थिंग्स इन माइंड जो हमने अभी अभी सीखी है। कैरेक्टर मतलब किरदार, सेटिंग मतलब प्लेस और टाइम, जगह और समय, एंड फीलिंग मतलब इंसान जो स्टोरी में किरदार है वो कैसा महसूस कर रहा है। ओके, स्टोरी लगा रही हूँ। क्या आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? क्या आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस दीदी। ओके, तो अब मैं इसको रीड करती हूँ। स्टोरी का पहले मैं स्टोरी का टाइटल पढ़ती हूँ, शीर्षक पढ़ती हूँ। तो मैं पहले पिक्चर मुझे दिख रही है, एक लड़की बनी हुई है बड़ी प्यारी सी, एंड वो स्कूल यूनिफॉर्म पहनी है उसने, तो शायद वो स्कूल जा रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है पिक्चर को देख के। मैं अभी टाइटल पढ़ती हूँ स्टोरी का। रानीज फर्स्ट डे एट स्कूल, मतलब रानी, मुझे लग रहा है लड़की का नाम है, तो रानी एक नाउन है, नाउन है, तो मैं इसको पी लिख रही हूँ यहाँ पे, प्रॉपर नाउन। रानीज फर्स्ट, आई नो फर्स्ट मतलब पहला, फर्स्ट सेकंड थर्ड हम बोलते हैं, तो मुझे पता है फर्स्ट मतलब पहला। डे क्या होता है, मुझे डे का मतलब भी पता है, डे मतलब होता है दिन, तो दिन, पहला दिन स्कूल में। ओके, तो मतलब ये स्टोरी किसके बारे में है? ये स्टोरी एक लड़की के बारे में, रानी, जिसका स्कूल में आज पहला क्या है? दिन है, राइट? वेरी गुड, दिन है। कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ मैम, मेरे स्क्रीन पे कुछ नहीं, स्टोरी नहीं दिख रही मुझे। स्टोरी नहीं दिख रही है। ओके मैम, मैं काम करती हूँ, मैं आपको लिंक भेज रही हूँ आपके व्हाट्सएप पे। आप इस स्टोरी को अपने फोन में खोल लीजिए और हमारे साथ करिए। मैं आपको भेज रही हूँ, 1 मिनट। ओके दीदी।
एक मिनट मैं स्टोरी भेज देती हूँ। कथन लड़की है। मैंने स्टोरी लिंक पर भी भेज दी है व्हाट्सएप ग्रुप पर, अगर किसी को मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है तो वो स्टोरी वहां से भी खोल सकते हैं। ओके ओके दीदी। ओके, तो मैं अभी इसको हाँ रीड कर रही हूँ। रानीज फर्स्ट डे एट स्कूल, ये मुझे टाइटल समझ में आ गया। मैंने अपने दिमाग से सोच सोच के फोटो को यूज करके मैंने समझ में आया है मुझे। अब मैं पहला पेज पढ़ती हूँ। तो पहले स्टोरी में जाने से पहले मैं सबसे पहले मैं हमेशा क्या करती हूँ, पहले मैं हमेशा फोटो को देखती हूँ। फोटो मुझे एक बार समझ में आ गई, फिर मैं कहानी स्टार्ट करती हूँ। तो मुझे लड़की दिख रही है रानी, शायद ये बच्ची का नाम रानी है। अब उसने किसी का हाथ पकड़ा हुआ है, शायद ये जो इंसान है शायद उसकी मम्मी हो सकती है, राइट? क्योंकि हम Yes. सब लोग अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, तो शायद वो अपनी मम्मी के साथ स्कूल जा रही है, मम्मी उसका हाथ पकड़े हुए हैं, राइट? तो अब आगे पढ़, अब रीड करते हैं, ठीक है? तो मैं रीड करती हूँ, आप लोग देखिए। इट इज माई फर्स्ट डे एट स्कूल। इट इज माई, इट और इज मैंने पढ़ा है साइट वर्ड्स है। माई Right. मतलब मेरा, फर्स्ट पहला, डे एट स्कूल मतलब मेरा पहला दिन है आज स्कूल में। मम्मी, आई नो मम्मी मतलब मम्मा, मम्मी इज होल्डिंग माई हैंड। मुझे होल्डिंग का मतलब नहीं मालूम है, पर मैं फोटो को देख रही हूँ, मुझे दिख रहा है कि मम्मी ने क्या किया है, मम्मी ने हाथ पकड़ा हुआ है। तो हैंड, हैंड मतलब हाथ होता है। मे बी सेंटेंस मुझे बता रहा है कि मम्मी ने क्या किया है, हाथ में मेरे हाथ पकड़ा हुआ है, राइट? एंड वॉकिंग, मुझे पता है वॉकिंग मतलब चलते हुए। चलना। सो वॉकिंग विद मी मतलब शायद ये बच्ची ये बोल रही है कि मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा है, मम्मी मेरे साथ चल चल के स्कूल जा रहे हैं। समझ में आ गया मुझे। अब मैं नेक्स्ट लाइन पढ़ती हूँ। आई एम ग्रोन अप नाउ, आई से लेट गो, लेट गो। ओके, लेट गो, मुझे पता है गो मतलब जाना होता है, जाने दो, जाने दो। तो वो बोल रही है ग्रो अप, मतलब मैं, शायद वो बोलना चाह रही है शायद कि मैं ग्रो अप हो गई हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, तो मुझे अभी खुद से क्या करने दो, जाने दो, राइट? ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट लाइन पढ़ती हूँ। मम्मी होल्ड्स माई हैंड वेरी टाइट। मम्मी होल्ड्स माई हैंड वेरी टाइट, मुझे हैंड का मतलब मालूम है, तो मतलब शायद ये बोल रहे हैं कि मम्मी ने मेरा हाथ बहुत जोर से पकड़ दिया। जोर से पकड़ा हुआ है। ओके ठीक है, तो मैंने इतना रीड किया है। अब मैं क्या काम करती हूँ, मैं जाके कुछ क्वेश्चंस का आंसर देती हूँ ताकि मुझे चेक करूँ कि मुझे कितना समझ में आया है, राइट? तो पहला क्वेश्चन है जो मैं आंसर कर रही हूँ। एक्चुअली क्या मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ किसी को अगर रीड करना है फर्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए, क्वेश्चन नंबर 1, कोई रीड करना चाहेगा? हाँ दीदी। हाँ, ओके, मुस्कान मैम गो अहेड। Where Mani with her mother. अमेजिंग, क्या समझ में आया मैम आपको इस क्वेश्चन में से? वेयर मतलब रानी अपनी मम्मी के साथ। लवली, वेयर मतलब कहाँ, एक्सीलेंट। तो रानी कहाँ पे जा रही है, गोइंग मतलब जाना, सो वेयर इज रानी गोइंग। तो ये आंसर तो मुझे पता है, रानी कहाँ जा रही है, रानी इज गोइंग टू स्कूल। स्कूल, राइट? तो मैं इसको कैसे बोलूंगी इंग्लिश में, अगर मुझे बोलना हो, आई विल से रानी इज गोइंग टू स्कूल विद हर मदर। मदर। ठीक है, अमेजिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम, दैट वाज अमेजिंग। किसी को क्वेश्चन नंबर 2 रीड करना है? Why do you think mummy hold Rani's hand very tight? लवली, क्या समझ में आया मैम आपको? वाई मतलब Why मतलब क्यों? क्यों? करेक्ट, रानी सो की मम्मी ने उसका हाथ टाइट क्यों पकड़ा है? एक्सीलेंट, वेरी वेरी वेल डन। हाथ क्यों टाइट पकड़ा है मम्मी ने? तो मैं दिमाग से सोचती हूँ क्यों पकड़ा होगा, शायद मम्मी को टेंशन है कि बच्ची मतलब इधर उधर मतलब गाड़ी में रोड पे जा रही है, और हम लोग रोड पे स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, तो कहीं गाड़ी वाड़ी ना आ जाए, तो इसलिए मम्मी केयर करती है ना, इसलिए टाइट से पकड़ा है हाथ। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? इंग्लिश में बोल सकते हैं कि मम्मी इज होल्डिंग रानीज हैंड टाइट, वेरी टाइट, बिकॉज शी केयर्स अबाउट रानी, राइट? वो रानी का ध्यान रखती है, रानी के बारे में केयर करती है, इसलिए। ओके, सो वी कैन से दैट मम्मी इज होल्डिंग रानीज हैंड टाइट बिकॉज शी केयर्स अबाउट रानी। ओके, नाउ अभी हम इसको इसके लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन, ये वाला। तो ये कौन रीड करना चाहेगा? लक्ष्मी मैम, रूपा मैम में से कोई रीड करना चाहेगा थर्ड क्वेश्चन? How do you feel on your child's first day of school?
हाउ डू यू फील ऑन योर चाइल्ड फर्स्ट डे ऑफ स्कूल? थैंक यू मैम। मतलब क्या आपको क्या लगता है, क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? हाउ मतलब फर्स्ट डे स्कूल में कैसा हुआ? हाँ, हाउ मतलब कैसे, करेक्ट। तो फील मतलब मैम, फील मतलब फीलिंग, राइट, महसूस, महसूस करना। तो क्या लगता है हाउ मतलब कैसे, तो कैसा यू, पहला दिन How do some other हाँ समझ नहीं आ रही दीदी। हाँ। तो मैम मैं ये पूछ रही हूँ कि हाउ मतलब कैसे होता है, करेक्ट। तो हाउ डू यू फील ऑन योर चाइल्ड फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, मतलब आपको, आपसे यू कौन है यहाँ पे? यू आप है, मतलब आपसे पूछ रहा है कि आपको कैसा फील होता है कब आपके आपके खुद के चाइल्ड के पहले दिन पे, स्कूल के पहले दिन पे। तो अगर आपका बच्चा जब स्कूल गया था पहली बार, तो उसमें आपको कैसा फील हो रहा था? समझ में आया आपको? हाँ, तो क्या बोल सकते हैं इसमें? यू कौन है, मतलब यहाँ पे यू मतलब हम लोग जो रीड कर रहे हैं इसको, वो यू मतलब हम लोग। तो हाउ डू यू फील ऑन योर चाइल्ड फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, मतलब आपको कैसा फील होता है अपने चाइल्ड के पहले दिन, स्कूल के पहले दिन पे। तो आप लोग क्या बोल सकते हैं इस आंसर में? क्या कोई शेयर करना चाहेगा? क्या किस तरह से हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं? एक्साइटेड एंड हैप्पी। एक्साइटेड, हैप्पी। थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग। अदर पीपल, और कोई बताना चाहेगा? सूर्या मैम? I feel nervous. नर्वस, ओके, लवली, थैंक यू मैम। सोहम की मम्मा या फिर रोहन राज की मम्मा, रेहाना मैम, अंजलि मैम, किसी को शेयर करना है? कैसा, हाउ वुड यू फील ऑन योर चाइल्ड फर्स्ट डे ऑफ स्कूल? I feel very happy. आई फील हैप्पी। थैंक यू रूपा मैम, अमेजिंग। तो आप लोगों को समझ में आया कोई कोई क्वेश्चंस? तो इससे हम ये सीख रहे हैं पेरेंट्स कि कोई कोई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो स्टोरी के बारे में होते हैं, है ना, कि मतलब कैरेक्टर का क्या नाम है, किरदार का क्या नाम है, किरदार कहाँ जा रहा है, कैरेक्टर कहाँ जा रहा है। और कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे से पूछते हैं कि अगर आप होते तो आपको कैसा फील होता, या फिर अगर आपका बच्चा स्कूल जा रहा होता पहली बार तो आप कैसा फील करते। तो कोई कोई क्वेश्चन हमसे हमारी फीलिंग भी पूछते हैं। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, राइट। हाउ डू यू फील, मतलब आपको, आप जो पढ़ रहे हो उसको आपको कैसा फील होगा। तो किसी ने बोला आई विल फील नर्वस, किसी ने बोला आई विल फील हैप्पी, एक्साइटेड। तो वो सारी फीलिंग्स आप फिर उसमें आंसर में लिख सकते हैं। अगर आपको ये क्लियर हुआ, इस पार्ट समझ में आया, तो हम स्टोरी का नेक्स्ट पेज पढ़े। समझ में आया ना? तो हमने क्या किया, अभी हमने इतना ही किया कि हमने खुद 4-5 लाइंस पढ़ी सिर्फ, और उसको पिक्चर को देख के हमने थोड़े थोड़े वर्ड्स का मतलब, थोड़े थोड़े मतलब हमें नहीं मालूम था, पर हमने गेस करके, क्लू ढूंढ के हमने उसका मतलब फाइंड आउट किया, राइट। ये हम एक बार और करते हैं। अब इस बार मैं नहीं रीड करूंगी, मैं किसी को इनवाइट करूंगी रीड करने के लिए नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पेज। ओके, सो हु वुड लाइक टू रीड? ये कौन पढ़ना चाहेगा हमारे लिए ये लाइंस? कैन आई रिक्वेस्ट रिहाना मैम या सरिता मैम या मंथन की मम्मा? करना है रिहाना मैम, आपको रीड करना है? फरहाना मैम का हैंड रेज्ड है, पर रिहाना हाँ रीड करी, फिर फरहाना मैम नेक्स्ट टाइम पढ़िएगा। ओके, There are many children near the school. लवली। नेक्स्ट लाइन में पढ़ लीजिए मैम। They come by bus. They come by car. परफेक्ट। अभी क्या क्या लग रहा है आपको मैम, क्या बोल रहे हैं? अभी पिक्चर को देख के भी देखिए, पिक्चर में क्या क्या दिख रहा है आपको, और आपको क्या लगता है क्या मतलब इसका? There are many children. यानी बहुत सारे बच्चे स्कूल के करीब जा रहे हैं, वेरी गुड। और कुछ बच्चे कार से आ रहे हैं, कुछ बच्चे बाइक से वो कार से और Beautiful. कुछ बच्चे बस से आ रहे हैं। ब्यूटिफुल मैम, वेरी वेरी वेल डन, स्पॉट ऑन, बहुत अच्छा था वो, वेरी गुड। सूर्या मैम, आप बाकी 2 लाइंस पढ़ना चाहेंगे? Yes, ma'am. यस मैम। They come by rickshaw. They cycle. They walk like me. क्या लगता है मैम, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब मैम है कि कोई रिक्शे से आ रहा है, कोई साइकिल से आ रहा है, और कोई पैदल चल के आ रहा है मेरे जैसा। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा मैम, इतना इतना अच्छा एक्सप्लेन किया, ग्रेट। तो हमने एक और पेज पढ़ लिया, बहुत ही ब्यूटीफुली इसको सेल्फ मॉनिटर करके समझा भी है। थोड़े से क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है? तो फरहाना मैम,
क्या आप ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारे लिए रीड कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 4। How do some other children go to school? हाँ, मतलब हाउ मतलब How मतलब कैसे? करेक्ट। हाउ डू सम चिल्ड्रन गो टू स्कूल? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे? कि चिल्ड्रंस कैसे स्कूल आ रहे हैं? करेक्ट, लवली। तो हमने क्या, वेरी गुड मैम, बहुत अच्छा था वो। तो हमने क्या पढ़ा अभी स्टोरी में से, कैसे कैसे आ रहे हैं बच्चे स्कूल? क्या क्या पढ़ा था हमने? सीता मैम बताइए। By हाँ दीदी, cycle. साइकिल से, कुछ लोग पैदल से आ रहे थे, और हम्म। कार से और बस से। अमेजिंग, वेरी वेल डन मैम, अमेजिंग, बहुत अच्छी मेमोरी है आपकी। तो कैसे बोलेंगे इसको अगर इंग्लिश में बोलना होगा तो? चिल्ड्रन आर कमिंग बाय बस, बस, रिक्शा, रिक्शा, कार कार, और साइकिल। और साइकिल। करेक्ट, साइकिल। वेरी गुड, अमेजिंग। तो इसको हम इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, चिल्ड्रन आर कमिंग बाय बस, रिक्शा, साइकिल और कार। ग्रेट। तो हमें एक और पेज पढ़ लिया, आप लोग ने पढ़ लिया, मतलब वेरी, बहुत अच्छे तरीके से। अब एक और पेज पढ़ते हैं। हमने 3 पेज पढ़ भी लिया ऑलरेडी। ये वाला पेज मैं चाहती हूँ, कौन पढ़ेगा? किसी को एक्चुअली वॉलंटियर करना है? जैनब की मम्मा, लक्ष्मी मैम, रेशमा मैम, राशिद की मम्मी, अंजलि मैम, रूपा मैम, किसी को रीड करना है? ओके, जैनब की मम्मी, गो अहेड। अजान प्लीज बंद कर मोबाइल। We reach the gate. Mummy, let's go to my hand. She says at the gate. I have to go inside alone. परफेक्ट। हाँ, परफेक्ट। There are many new faces all around me. लवली। क्या लग रहा है मैम आपको? पहले पिक्चर देख के देखिए कि मतलब वो रानी जो है वो थोड़ा डरी डरी लग रही है फोटो में। तो क्या लगता है, क्या बोल रहे हैं लोग? हम लोग लगा चुके हैं। वी रीच द गेट। गेट मतलब वो दरवाजा जो है, स्कूल का दरवाजा। वो लोग शायद वहां पे क्या हो गए, पहुंच गए हैं, गेट तक पहुंच गए हैं, है ना? और अगर आप मैम देखेंगी फोटो में तो मम्मी जो है, रानी की मम्मी पीछे खड़ी है। मम्मी लेट्स गो ऑफ माई हैंड, मतलब मम्मी ने अब मेरा, शायद मम्मी ने मेरा हाथ छोड़ दिया है। राइट मैम? Yes, दीदी। हाँ, फिर उसके बाद she stays at the gate. I have to go inside alone. Alone मतलब शायद वो अभी अकेले, उसको अलोन होके उसको अंदर जाना है, खुद से जाना है। और वो बोल रही है देयर आर मेनी न्यू मतलब नया, राइट? न्यू मतलब नया, फेस मतलब फेस, चेहरा। तो मतलब देयर आर मेनी न्यू फेसेस, मतलब बाकी सारे बच्चे जो हैं वो सब उसके लिए नए हैं। तो वो बोल रही है सब, ये सब क्या है, सब मेरे लिए बहुत न्यू फेसेस है, और इसलिए वो थोड़ी थोड़ी डरी हुई फील कर रही है। तो अभी हम थोड़ा सा गेस करते हैं कि यहाँ पे आपको क्या लगता है, रानी का फेस देख के आप क्या बोल सकते हैं? उसको क्या, कैसा फील हो रहा है मैम इस समय? नूरजहां मैम, क्या लगता है आपको? हाँ, थैंक यू मुस्कान मैम। नूरजहां मैम, आप बताइए कि उसको इस समय कैसा महसूस कर रही है वो फोटो देख के? वो थोड़ा घबराई से लग रही है, और थोड़ा अंदर से थोड़ा डर है, मतलब करेक्ट मैम, करेक्ट, घबराई हुई है। तो वो बोल रही है कि इतने सारे न्यू फेसेस हैं और मम्मी ने मुझे छोड़ दिया पीछे, तो मैं अभी मुझे अकेले जाना है। तो वो बहुत घबराई हुई है। अमेजिंग, थैंक यू मैम। कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे कि ये अभी इस समय स्टोरी की सेटिंग क्या है? मतलब स्टोरी में ये लोग कहाँ पे इस समय? सरिता मैम, स्कूल में। अमेजिंग, स्कूल। करेक्ट, वेरी गुड। स्कूल के गेट के बाहर का ये सीन है। स्कूल के गेट पे खड़े हैं। वेरी गुड मैम, बहुत अच्छा था वो। अमेजिंग। तो आप लोगों को ये भी समझ में आ गया, थोड़ा थोड़ा हिंट लेके। थोड़ा डिफिकल्ट है बट धीरे धीरे हमें समझ में आने लगेगा। वेरी गुड। तो इसका एक बार एक क्वेश्चन आंसर करते हैं अभी हम लोग। थोड़ा रीड किया है हमने ये वाला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कौन रीड करना चाहेगा हमारे? अंजलि मैम, क्या मैं आपको टैग कर सकती हूँ रीड करने के लिए क्वेश्चन नंबर 5? Mummy let go of running
अंजलि मैम, क्वेश्चन नंबर 5. Yes, ma'am. Why does mummy lay go of Rani's hand? Rani hand. रानीज हैंड. क्या लगता है आपको वाई मतलब क्या होता है मैम? वाई मतलब वाई मतलब क्यों, राइट? तो मम्मी तो क्या पूछ रहे हैं? वाई डज मम्मी मतलब मम्मी क्या? हाँ बोलिए मैम. क्यों मम्मी ने रानी का हाथ करेक्ट. मम्मी ने रानी का हाथ क्यों छोड़ा? हाथ क्यों Correct. छोड़ तो दिया? किसी को ट्राई करना है इसको इंग्लिश में बोलना कि मतलब क्या इसका आंसर क्या होगा? मम्मी ने क्यों छोड़ा हाथ रानी का? रानी is go to school. Lovely. Thank you Zara की मम्मा. Because Rani have reached school, right? रानी को Go स्कूल to जाना है. school. करेक्ट. वेरी गुड मैम. तो उसको बोल सकते हैं मम्मी लीव रानी हैंड क्योंकि बिकॉज रानी हैज गो टू स्कूल. वेरी गुड. थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट. बस 2 पेज और करेंगे हम आज के लिए. एक्चुअली 1 पेज और काफी करा है ऑलरेडी आज. तो 1 पेज और करते हैं. लास्ट पेज. लास्ट पेज कौन रीड करना चाहेगा हमारे लिए? रूपा मैम, मंथन की मम्मी, सरिता मैम, किसी को रीड करना है? ओके. सरिता मैम आप रीड करेंगे? I think on it. I think it under Another. another spot. I look back. Mummy get similar. Smaller. I work smaller. Yes, I work away. Will see Disappear. हाँ. Very good. Disappear. I run back to her. I don't. Lovely. It feels so good. Down. Up. I hold her hand. Done. It go away. I see. लवली मैम. बहुत अच्छा पढ़ा. बहुत सारे बड़े इसमें बहुत नए वर्ड्स थे पर आपने बहुत अच्छे से किया. तो आपको क्या लगता है मैम? क्या मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको इसमें से? इस लाइन में से पिक्चर को देख के क्या लग रहा है आपको? क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? I take one step यानी उसने पहला कदम दिया. ओके. थैंक यू मैम. फरहाना मैम. लक्ष्मी सरिता मैम आपको क्या लगता है? क्या मतलब क्या हो रहा है इसमें इस पार्ट में? वो मम्मी के पास आके गले लगी दौड़ गई. करेक्ट. और बोल रही है डोंट गो अवे मतलब मैं don't go. नहीं जाओ. राइट. मत जाओ छोड़ के मुझे अकेले नहीं. हाँ राइट. तो अभी उसको क्या करती है? रन करती है. रन करके कहाँ जाती है? मम्मी के गले लग जाती है. मम्मी के गले. बहुत डर लग रहा है राइट अकेले जाने में. लवली. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग. लास्ट क्वेश्चन हम आंसर करते हैं आज के लिए, फिर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 कौन ब्रेव पर्सन रीड करना चाहेगा? क्वेश्चन नंबर 6 वाला. I see. How do you सॉन्ग मम्मी रीड करेंगी? when running? Okay. रूपा मैम. रूपा मैम आप रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 6? Yes. गो अहेड मैम. Go away. I saw. How do you think mummy feels when Rani says this? लवली मैम. हाउ मतलब कैसे? कैसे. राइट. तो हाउ डू यू थिंक मम्मी इज फीलिंग मतलब मम्मी को कैसा फील हो रहा है? व्हेन रानी सेज डोंट गो अवे. तो जब रानी बोलती है डोंट गो अवे तो मम्मी को कैसा फील हुआ अंदर से? तो क्या लगता है मैम मम्मी को कैसा फील होगा अगर मतलब रानी आके बोलती है कि मम्मी डोंट गो, तो मम्मी को कैसा फील होगा? क्या हुआ? मम्मी को कैसा फील होगा?
sad, mummy is sad. मम्मी अंदर मम्मी से को सैड फील होगा, comfort राइट, कि मेरा देखो मेरी बेटी डर रही है, तो उसको उनको भी सैड फील होगा, करेक्ट। तो आप कैसे बोल सकते हैं, बोल सकते हैं मम्मी इज फीलिंग सैड sad. when Rani says this, right? मम्मी is feeling sad और मम्मी is feeling emotional, मम्मी को भी इमोशनल फील होगा ना, ऐसे कोई बच्चा बोलेगा आके अपना, तो मम्मी बोलेगी मम्मी is feeling sad, मम्मी is feeling emotional when Rani says this. Okay, तो थैंक यू सो मच पेरेंट्स, हमने इतनी डिफिकल्ट स्टोरी पढ़ी in our third class and we did such a good job. हमने आज for the first time हमने question words सीखे और हमने आज ही 6 questions आंसर भी करे खुद से. So I think we've done a brilliant job. Everyone, I want you to clap for yourselves. Really well done, really well done everyone. Thank you दीदी. Thank you, ma'am. हमारा अभी के लिए मैं आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ाऊंगी, पर हम लोग एक फाइनल एक्टिविटी करेंगे क्योंकि हमारे वीक का एंड आ गया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीक मिलेंगे डायरेक्टली, राइट, मंडे को। तो एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे जाने से पहले, बट मैं आपको अब कुछ नया नहीं पढ़ाने वाली हूँ, तो वो एक रीअश्योरेंस है मेरी तरफ से। पर हम लोग एक एक्टिविटी ये करने वाले हैं। ओके, पहले मुझे आप लोगों से ये पूछना है कि आप लोगों के पास अभी थोड़ा सा समय है कि आप जाके तुरंत एक्टिविटी करने का समय है? Yes दीदी. ओके, लवली। तो ये एक सर्कल टाइम है, मतलब ये एक डिस्कशन है जो मैं चाहती हूँ हम लोग करें। कोशिश करते हैं कि थोड़ा इंग्लिश में बोले, पर अगर नहीं भी बोलेंगे तो भी मतलब इट्स कम्प्लीटली फाइन। हमारा कोशिश ये रहेगा कि हम सब शेयर करें, राइट, क्योंकि ये जो क्लासेस हमने शुरू करी हैं इनका मकसद सिर्फ इंग्लिश सीखना नहीं, पर आप लोगों का कॉन्फिडेंस, आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस और अपने ऊपर गर्व होना भी, वो भी एक इसका मकसद है, राइट। तो हम लोग इसलिए एक सब लोगों को यहाँ पे पुश करेंगे कि हम लोग अपने ओपिनियन को शेयर करें और डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें। ओके, तो आज के डिस्कशन में एक 5 to 7 मिनट्स का डिस्कशन करना चाहती हूँ आप लोगों से, और इसका टॉपिक है स्कूल क्लोजर एंड व्हाट डू वी थिंक अबाउट इट। मतलब इसका मतलब ये कि स्कूल से बंद है तो हम इसके बारे में क्या सोचते हैं। हम सबके बच्चे हैं जो स्कूल जाने की उम्र के हैं और वो लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस है। तो आप लोग पेरेंट्स हैं, आप लोग माएँ हैं, आपका क्या ओपिनियन है, क्या लगता है आपको स्कूल बंद होने के बारे में? और दो चीजों के बारे में आप सोच सकते हैं ये क्वेश्चन का आंसर देने की। पहली चीज ये है कि क्या आपको लगता है कि स्कूल्स ओपन होना जरूरी है या खुलने चाहिए? अभी 2 साल से चल रहा है, अभी वैक्सीन भी लग गई है, तो स्कूल्स को हमें खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए अभी? और दूसरा चीज ये कि किस तरह का असर पड़ रहा है हमारे बच्चों पे कि इतने टाइम से स्कूल बंद है, तो बच्चों पे इसका क्या असर पड़ रहा है, ये भी आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा डिस्कशन हम करेंगे, चर्चा हम करेंगे। कोशिश करेंगे कि जितना हो सके उतना इंग्लिश में बोले, जितना हम हमारे से हो पाए। और हम 2 चीजों के बारे में सोच रहे हैं कि क्या ये जरूरी है कि बच्चे स्कूल जाएं, स्कूल्स खुलें, और दूसरा कि क्या असर पड़ रहा है स्कूल्स के बंद होने का हमारे बच्चों पे। ठीक है, मैं आप सभी लोगों को 1 मिनट का टाइम देती हूँ। आप लोग सोच लीजिए जो भी आप लोगों को शेयर करना है, फिर एक करके हम लोग सबको बोलने का चांस देंगे एंड वी विल ऑल शेयर इन दिस discussion. Okay, so I'll give you everyone a minute to think. Let's begin this discussion. Okay, तो कोई भी जो भी रेडी है पॉइंट्स के साथ, सब लोगों को 2 मिनट मिलेंगे अपना पॉइंट्स रखने के लिए, सामने रखने के लिए। तो जो भी रेडी है अपना हैंड रेज करे एंड वी कैन स्टार्ट। ओके, कार्तिक की मम्मा का हैंड रेज्ड है, सो मैम स्टार्ट, यू कैन स्टार्ट। सूर्या मैम। Yes, ma'am. Most of the children are facing very difficulty for learning. Mostly they faces in maths and science because maths and science are so much difficult, and they are playing more times in outside. Right. And their handwriting is also not good in nowadays. Correct. Thank you so much, ma'am, for sharing, and I'm feeling so proud to hear you share in English. Thank you so much for that. बहुत अच्छे points रखे हैं सूर्या मैम ने आगे। Yes, ma'am. Ma'am, grammar. Yes, ma'am. अभी के लिए आपने जो भी बोला, it was amazing. Thank you so much for sharing. बहुत अच्छा लगा सुन के। Thank you so much. We can go to Muskan ma'am next. Muskan, please share what you want to share about this topic. School should be
reopen soon because children is not study at home. Like school children also facing difficulties. Absolutely. Thank you so much, ma'am. I'm feeling so happy and I can't stop smiling to hear everyone share in English. Thank you so much, ma'am. I hear your opinion and I agree with you. मैं आपसे agree करती हूँ कि बच्चे घर पे उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं जैसा स्कूल में पढ़ते हैं. Thank you so much for sharing that and that too in English. More power to you, ma'am. Let's go to the next person. राशिद की मम्मा, क्या आप शेयर करना चाहेंगी अगला? यस दीदी, मैं राशिद को मतलब स्कूल तो चालू ही होना चाहिए क्योंकि बहुत परेशान कर दिया है और ना पढ़ाई करता है ना कुछ करता है, तो इससे अच्छा तो स्कूल ही सही था. लेकिन अभी कोरोना की वजह से थोड़ा डर भी है, वो नहीं हो तो भी अच्छा है. दोनों तरफ से है कि मतलब जाए स्कूल तो भी ठीक है और नहीं जा रहे हैं तो भी ठीक है क्योंकि कोरोना की वजह से परेशानी हो जाएगी. करेक्ट. पर मैम आपको नहीं लगता कि मतलब हमारे सरकार जो है उनको काम करना चाहिए ताकि स्कूल्स सेफ रहे बच्चों के लिए? जैसे कि हमारी सरकार ने बार्स खोल दिए हैं, राइट? बार्स खुले हुए हैं, रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, बाहर जाने के रेस्टोरेंट्स खाना वाना खाने के लिए खुले हैं, बट स्कूल्स नहीं खुले. हाँ, वो सब तो खुले हुए हैं, वो सब कुछ चालू है, लेकिन यही सिर्फ स्कूल नहीं चालू है. राइट. तो अगर हम लोग ये तो नुकसान हो ही रहा है. करेक्ट मैम, करेक्ट. तो हम उसके बारे में सोच सकते हैं कि मतलब अगर सरकार बाकी चीजों के लिए खोलने के लिए हम अगर सब मेहनत कर सकते हैं तो स्कूल हम सोच रहे हैं कि नहीं बच्चों की पढ़ाई है तो ठीक है, घर पे भी तो पढ़ ही रहे हैं, पर क्या बच्चे घर में पढ़ रहे हैं? ये बात से कौन जान सकता है? नहीं पढ़ रहे, बिल्कुल नहीं पढ़ रहे. बहुत उन लोग के पैकेट देना पड़ता है, उनके पीछे आगे दौड़ना पड़ता है. आधा घंटा लेके बैठते हैं, फिर उसके बाद फिर वही यूट्यूब पे चले जाते हैं, तो कहीं कुछ है कहीं कुछ छोड़ के भाग जाते हैं. करेक्ट मैम, करेक्ट. थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग दैट. बहुत अच्छे से आपने अपना पॉइंट रेज किया, कोविड के बारे में ध्यान रख के भी शेयर किया, सो आई रियली अप्रिशिएट दैट. थैंक यू. वी कैन गो टू ज़ारा's मॉम नेक्स्ट. ज़ारा की मम्मा आप शेयर करेंगे नेक्स्ट? हाँ दीदी, स्कूल तो खुलना ही चाहिए क्योंकि बच्चे बहुत बर्बाद हो रहे हैं जब से ये बताए. स्कूल पढ़ाई बहुत खराब हो रही है इन लोग की. स्कूल खुलना चाहिए, मेरी तो यही ओपिनियन है, स्कूल खुलनी चाहिए बस. थैंक यू मैम, आपका ओपिनियन बहुत स्ट्रांग है एंड आई लव दैट आप उसको बहुत ही मतलब खुले और फियरलेसली शेयर कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. उरूपा मैम, वुड यू लाइक टू शेयर नेक्स्ट? देन नूरजहां मैम कैन शेयर. यस दीदी. यस, मुझे लगता है कि स्कूल चालू होना चाहिए. यस मैम. क्योंकि बच्चे घर में ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे. ट्रू मैम. एंड क्या किस तरह का बच्चों पे असर पड़ता है मैम? अगर मैं आपसे पूछूं कि किस तरह का असर पड़ता है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है बच्चों पे स्कूल्स बंद होने का? दीदी स्कूल जाएंगे, उनका एक्टिविटी अच्छा रहता है, 10 लोगों से मिलते जुलते. अभी घर पे ये ना किसी से मिलना है कुछ नहीं. ट्रू, वेरी ट्रू मैम. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट. तो बच्चों की एक्टिविटीज एंड is what I'm hearing from you. Thank you so much ma'am for sharing that. Noorjahan ma'am, will you share next? Children is go school because children is saying mobile every day, but I was destroy. Very good ma'am. Thank you so much for sharing that. I'm hearing a very strong opinion from ma'am. Ma'am is saying that बच्चे घर पे सिर्फ मोबाइल देख रहे हैं. Children are only using mobile and they are not studying, so children should go to school. Thank you so much ma'am. बहुत अच्छे से शेयर किया आपने, बहुत ही confidently शेयर किया. Really appreciated. Anyone else who would like to share? Rehana ma'am, go ahead. स्कूल दीदी चालू होना चाहिए क्योंकि अब बच्चों का टाइम टेबल सब बिगड़ गया है. लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, तो स्कूल जाने से कैसे वो लोग वक्त पे सोएंगे, वक्त पे उठेंगे. पहली बात तो वो हर चीज वक्त पे होगा, साथ में पेरेंट्स भी वक्त पे सो के वक्त पे उठेंगे. क्योंकि हम लोग भी स्कूल नहीं है इसलिए लेट सोते हैं, लेट उठते, कोई टाइम टेबल ही नहीं है. राइट मैम, एब्सोल्युटली टाइम टेबल खत्म हो गया बच्चों का. ग्रेट मैम, वेरी वेरी ग्रेट पॉइंट. थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट. कौन बचा है? लक्ष्मी मैम बचे हैं, मंथन की मम्मी बची है, फरहाना मैम बचे हैं, और कौन बचा है? सोहम की मम्मी बची है और सरिता मैम बची है. आप लोग से भी सुनूंगी मैं. कोई भी जा सकता है. लक्ष्मी मैम आप जाएंगे पहले? जितना जल्दी खोलेंगे तो उतना अच्छा है दीदी. ट्रू मैम, ट्रू.
पढ़ाई बराबर नहीं है, सुनता नहीं है बच्चे लोग, बार बार मोबाइल लेके बैठते हैं। 2 करेक्ट घंटा मैम, क्या समझ जाते दीदी, 2 घंटा ऑनलाइन क्लास में कुछ समझता नहीं है बच्चे लोग को पूरा सब्जेक्ट का। करेक्ट मैम, करेक्ट, सही बात है। तो आपको भी लगता है कि स्कूल खुलने चाहिए? आई एम हियरिंग अ लॉट ऑफ दीदी स्कूल खुलना चाहिए। आप सबके ओपिनियंस बहुत एक दूसरे से बहुत सिमिलर है। थैंक यू मैम। सरिता मैम, क्या आप बताना चाहेंगे कि क्या असर पड़ रहा है इस समय बच्चों के ऊपर स्कूल्स बंद होने का? और बच्चे पढ़ते नहीं, उनको बहुत फोर्स करना पड़ता है पढ़ने के लिए, करेक्ट, उनके पीछे दौड़ना पड़ता है, बहुत बोलना पड़ता है। करेक्ट मैम, और अगर स्कूल चालू भी होता है तो कोरोना सेफ्टी होना चाहिए, स्कूल आराम से चालू हो सकता है। आई एग्री मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर पॉइंट। सोहम की मम्मा, वुड यू लाइक टू शेयर? दीदी मैंने पूरा सुना ही नहीं, काम चालू है ना रूम का। कोई मैम, कोई बात नहीं, जो भी आपको शेयर करना है थोड़ा सा आप कर सकते हैं, नो वरी। स्कूल चालू होने के बाद में ऐसा तो चालू ही होना चाहिए थे, बच्चे लोग घर में ऑनलाइन आप होमवर्क नहीं करते इतना। करेक्ट। हाँ, इसलिए थोड़ा स्कूल चालू है तो सही है, ऑफलाइन क्लासेस है वो भी सही है आपका। मेरा तो बहुत मन कर रहा है लेकिन सही मैम, मैं समझ सकती हूँ आपका। थैंक यू मैम। ऑफलाइन क्लासेस के बारे में भी सुन के अच्छा लगा कि आपको लगता है मेरा बहुत मिस हो रहा है ना क्लास। राइट मैम, राइट। पर मैं आपका पॉइंट समझती हूँ, तो थैंक यू मैम कि आप सोच रहे हैं इसके बारे में। अमेजिंग। आई थिंक सिर्फ मंथन की मम्मा बचे हैं, बाकी सबने शेयर किया है, राइट? सबको चांस मिला है। हाँ, फरहाना मैम ने नहीं किया। मंथन की मम्मा, आप बताइए, व्हाट इज योर ओपिनियन? आपका क्या ओपिनियन है? दीदी मुझे भी लगता है स्कूल चालू होना चाहिए। घर में के बच्चे लोग होमवर्क करते नहीं, कुछ नहीं, उनके पीछे बहुत लगना पड़ता है। अभी मंथन ऑफलाइन में आता है तो उधर कर लेता है, पर घर पे करता नहीं है, उसके बहुत राइट पीछे मैम, लगना पड़ता है। इसलिए मुझे भी लगता है स्कूल चालू होनी चाहिए। राइट। और थैंक यू मैम। और अगर आप सोचिए, मतलब बच्चों का पूरे सारे फ्रेंड्स, उनका ब्रेक टाइम, उनका प्ले टाइम, सब कुछ खाने टाने का उसका भी टाइम पूरा खराब हो गया है। वही मैम। तो अगर हम हमारे बच्चों के बारे में सोचे तो उनके लिए भी कितना हुआ है कि हमारे स्कूल के दिन हमारे बेस्ट दिन थे ना, मतलब हम लोग पूरे मस्ती करते थे, कोई टेंशन नहीं थी हमें। तो बच्चों का वो ले लिया है, ऐसा लगता है। तो वो भी उनके लिए भी बहुत वो है, मतलब बहुत सैड है सोचा जाए तो। सही बात है। थैंक यू मैम। करेक्ट। लास्ट पर्सन आई थिंक सिर्फ फरहाना मैम बचे हैं, तो फरहाना मैम, आपका ओपिनियन सुनने को मिलेगा तो बहुत अच्छा रहे, बहुत अच्छा होगा। आप बताइए, आपको क्या लगता है, स्कूल खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? हाँ, खुलना चाहिए मैम। बच्चे बहुत केयरलेस हो गए हैं, सारा दिन मोबाइल लेकर पड़े रहते हैं। ट्रू, ट्रू। मुजना भी देख रही है। एक ही स्टूडेंट है पूरे मीटिंग में और वो देख रही है क्या बोल रहे हैं सारे पेरेंट्स। ओके, थैंक यू फरहाना मैम, आपने पॉइंट रेस किया कि बच्चे केयरलेस हो गए बहुत मोबाइल देखने की वजह से। बच्चों की भी गलती नहीं है इसमें कि बच्चे पूरे दिन मोबाइल पे रहते हैं, क्योंकि उनका होमवर्क ही सब ऑनलाइन है, तो वो क्या करेंगे? ऑनलाइन क्लासेस के पढ़ते पढ़ते वो कहीं और चले जाते हैं। ट्रू, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते पढ़ते वो गेम में चले जाते हैं। करेक्ट मैम, करेक्ट। ओके, अमेजिंग, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो हमने हमारा फर्स्ट एवर डिस्कशन भी किया। अ लॉट ऑफ यू, आप बहुत सारे लोग ने यहाँ पे इंग्लिश में भी बोला। जो नहीं बोला इस बार, नेक्स्ट वीक मैं चाहूंगी, मैं आपको पुश कर रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप इंग्लिश में शेयर करें। गलत होगा सही होगा उससे कुछ फर्क नहीं है, हम सब सीख ही रहे हैं, तो नो प्रॉब्लम। बट थैंक यू फॉर शेयरिंग योर ओपिनियंस। आप लोग बहुत ब्रेवली आप सब आगे बढ़, सबने अपना खुद का यूनिक पॉइंट बोला। किसी ने बोला टाइम टेबल के बारे में, किसी ने बोला केयरलेसनेस, किसी ने बोला बच्चों को खेलने नहीं मिलता, किसी ने बोला होमवर्क के बारे में। ऑल ऑफ देम वर वेरी वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट्स। Thank you so much everyone. We are almost done with our class. I just want us to do one final thing, then I'll say ये पक्का से लास्ट चीज है, फिर हम जाएंगे। ओके, तो ये कुछ सवाल है जो मैं चाहती हूँ आप सब लोग एक बार सोचें इनके बारे में अपने लिए, क्योंकि आपका एक फर्स्ट वीक खत्म हुआ है आज क्लास का। तो चाहती हूँ आप लोग 2-3 मिनट लें और इसको एक बार इन क्वेश्चंस के बारे में सोचें। क्वेश्चंस रीड कर देती हूँ कि क्वेश्चंस क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि आपका हफ्ता कैसा था? हाउ वाज योर वीक? आपका हफ्ता कैसा गया फर्स्ट वीक पढ़ाई का? कितने बार आपको चांस मिला होमवर्क करने का, रीड करने का, घर पे टाइम निकालने का? कितने बार आपको चांस मिला? 2 बार, 1 बार, 3 बार, 4 बार? ठीक है। फिर कितना प्रैक्टिस आप कर पाए रीड करने का और इंग्लिश बोलने का अपने बच्चों के साथ या खुद से अकेले में? फिर कितना आपको क्या और करना है
आने वाले हफ्ते में, क्या आप चाहते हैं कि आप ये करें या वो करें आने वाले हफ्ते में, और क्या ऐसा कोई गोल है आपके दिमाग में जो आपको अचीव करना है, आपको उसको सेट करना है। तो हम बच्चों को हमेशा बोलते रहते हैं गोल बनाओ अपने लिए, तो वैसे ही हम आपसे भी पूछना चाहते हैं कि क्या आपके मन में ऐसा कोई गोल है जो आपको चाहिए कि आप अचीव करें आने वाले हफ्ते में। ये तो हमारा फर्स्ट हफ्ता था, राइट, सब लोगों के लिए न्यू था, पर अब हमें समझ में आ गया कि कैसे क्लासेस होती हैं, क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। तो आने वाले हफ्ते में आप क्या क्या मकसद आप सेट करना चाहते हैं अपने लिए। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। कैसा था आपका हफ्ता, कितना टाइम निकाल पाए आप अपने लिए, क्या आप और करना चाहेंगे, और क्या आप अपने लिए कोई गोल सेट करना चाहेंगे, अगर हाँ तो क्या है वो गोल। ओके, क्या आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए कि क्या मतलब क्या दीदी पूछ रहे हैं, समझ में आया आप लोगों को। ओके यस दीदी। ओके अमेजिंग। तो मैं आप लोगों को सोच रही हूँ मैं ब्रेकआउट रूम में, आप बताइए कि आपको ब्रेकआउट रूम में जाके किसी बड़ी के साथ शेयर करना है या फिर आपको यहाँ पे शेयर करना है। ब्रेकआउट रूम बेटर रहेगा क्योंकि सब लोगों को चांस मिलेगा शेयर करने का फिर, और टाइम भी सेव होगा, राइट। तो मैं ब्रेकआउट रूम क्रिएट करती हूँ जल्दी से। आप जाके बस अपना आंसर शेयर करके आ रहे हैं कि जो भी मैंने क्वेश्चन शेयर किए उनके बारे में, कि आपका हफ्ता कैसा था, क्या आपने कितना टाइम निकाला अपने लिए रीड करने के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, अपनी लर्निंग के लिए, क्या आपको और करना है आने वाले हफ्ते में, और क्या आप अपने लिए कोई गोल सेट करना चाहते हैं। तो हम ये डिस्कशन करके यहाँ पे हमारी मीटिंग हम एंड करेंगे। तो मैं अभी ब्रेकआउट रूम बना रही हूँ, 2 या 3 मिनट के लिए बस हम खोलेंगे रूम को, फिर हम वापस आ जाएंगे। ओके, तो अभी आपको एक इनवाइट लिंक आएगा, ज्वाइन, उसमें ज्वाइन में क्लिक कर दीजिएगा। ओके, आप लोगों को आ गया होगा लिंक, उसको बस पाना है। कैसा था आपका डिस्कशन ब्रेकआउट रूम में, क्या आप लोगों को शेयर, क्या आप एक बार मुझे थम्स अप देके बता सकते हैं कि आप, अगर आपको शेयर करने का चांस मिला तो आप थम्स अप दे दीजिए। मुस्कान मैम को मिला, सोहम ओके, जैनब की मम्मा, अभिनव, ठीक है। तो काफी लोगों ने शेयर किया। मंथन की मम्मा, आपको शेयर करने का चांस मिला ब्रेकआउट रूम में? नो दीदी। अरे ये क्यों होता है हमेशा, ठीक है आप मेरे साथ शेयर करिएगा। ओके मुझे सुनना है आपके रिफ्लेक्शंस, बट दैट्स इट। ये यहाँ पे हमारी क्लास एंड होती है। पेरेंट्स, थैंक यू सो मच आने के लिए, और इतना सब कुछ इतने खुले दिमाग से और अच्छे से सीखने के लिए। हमने कितना कुछ कर लिया फर्स्ट वीक में ही, 2 स्टोरीज पढ़ लिए, खुद से इतने सारे वर्ड सीख लिए, नाउन सीखा, प्रॉपर कॉमन साइट वर्ड्स, वोकैब वर्ड्स, फोनिक्स, क्या क्या सीख लिया। नेक्स्ट वीक ऑल्सो विल बी वेरी नाइस, बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू एवरीवन। मैं थोड़ी देर में आप लोगों को आज का होमवर्क सेंड करूंगी, अभी आप लोग टेस्ट करिए एंड बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। अपने आप को ऐसे आप एक्सरसाइज दे सकते हैं। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू। लॉट्स ऑफ लव, बाय दीदी। बाय बाय, टेक केयर।